YouTube channel. So today we are here with a special interview. Most of the students who were preparing for GATE exam. So right now you already know you have the marks with you. So जिनका अच्छा हुआ है, definitely all the best for your uh, result, for your rank and for college admissions as well. और जो PSU target कर रहे हैं, definitely best of luck for that. But बहुत सारे ऐसे student होंगे like who will be feeling कि मतलब हो गया, मैं सब हो गया, ठीक है, एंड इट्स फाइन, इट्स ओके। ओके, जैसे कि हम हमेशा बताते हैं कि गेट से क्या क्या हो सकता है, बट इट डजंट मीन कि गेट ही वो गेट है एग्जैक्टली या फिर वो डोर है जिससे आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं। यू स्टिल हैव ग्रेट चांस, एंड फॉर दैट थिंग ओनली, टू डिस्कस दैट पार्ट ओनली, वी हैव ग्रेट पीपल विद अस, विक्रम एंड आयुष फ्रॉम ट्रिपल आईटी हैदराबाद। ठीक है, सो दे विल बी गाइडिंग यू that okay, how you can prepare for PGEE exam, which is for pursuing masters at Triple IT Hyderabad. And I hope I should not be telling like okay how great it is, because it's already there everywhere. Okay, so we have these amazing people right now. So I'll be introducing these guys to you, and then we'll be proceeding further with the guidance session. Okay. So first of all, with Vikram, you can tell our audience, our students, basically about yourself in brief. Yeah. Sure. So my name is Vikram Keswani, and currently I'm like working with Intude as a SD2. And previously I worked with like Rupik Fintech, and I got placement from Triple IT Hyderabad only for Rupik Fintech. And I completed my Triple IT Hyderabad in year 2021. And before that, I used to work with Synopsys as a application security engineer. And I completed my BTech in year 2017. And yeah, and I'm like how I met with the Sachin, like we met in year I guess in 2019. Yeah. Interview of IIT Guwahati, MTech in data science. Data Like science, we yeah. met there, and there was an interview. Yeah, so it was a very fine Fun conversation with session, him, and yeah. it was a fun session, and we got very in a couple of days we got very good friend, and we exchanged our number, and like we were contacting from that time. Yeah. Cool. Yeah. So we have another person as well, and thanks for the intro, Vikram. We have another guy, Ayush, from the same, like these are the buddies, and I just got to know him with the help, like Vikram made, introduced him to me. So yeah, it's Ayush. So yeah, you can tell me like, tell the students about yourself in brief. Yeah, sure. Yeah. I think I'm audible, right? Yeah, you're audible. Okay. So, I'm Ayush Upadhyay. I'm currently working as an SG2 in Amazon, Hyderabad. I did my post-graduation from Triple IT Hyderabad and specialized in computer science and information security. Vikram was my batchmate, so we post-graduated together in 2021. Back then, I took some 2 years to prepare for GATE. So, first, like 2018, my rank was 713, and 2019 it was 673. And Okay. in 2018, I was also selected for ECIL, Electronics Corporation of India Limited. But the growth for computer science professional, I found that that PSU was not meant for that. And Mhm. while studying for GATE and studying the depth in subject made me fall in love with them. So I thought of pursuing my career entirely in the private sector Okay. and chose not to go forward with PSU. Uh, and I graduated completed my BTech in 2015 from Sri Ram Murthy Smarak, Bareilly. It's a UPT affiliated college. Uh, yeah, so that's all about me. So thank you for the intros, guys. So अभी धीरे धीरे हम डायरेक्शन में बढ़ेंगे, तो ठीक है, like you are already doing great in fact in your careers. But कुछ साल पहले की अगर हम बात करें, तो वो एक छोटा सा होता है ना, डर होता है अंदर, like कि यार गेट खराब हो गया, because somewhere if you are not in IIT and you are in Triple IT Hyderabad, so there was a comparison and that's why you chose that, looking at all the opportunities you are having. So एक वो dilemma रही होगी, वो एक थोड़ा सा काइंड ऑफ एक वो पॉइंट होता है जो थोड़ा सा लोएस्ट पॉइंट काइंड ऑफ आप समझ सकते हैं। सो वो रहा होगा, तो कैसे, बिकॉज आई वोंट बी आस्किंग व्हाट एग्जैक्टली वाज द गेट स्कोर रैंक, वो गया, एंड आई नो लाइक यू गाइस डिड ग्रेट। सो व्हाट आफ्टर दैट, जब गेट का आपको पता चला कि ये स्कोर आने वाला है, उसके बाद फिर लगा होगा कि यार मेरे को कौन सा कॉलेज मिलेगा, लाइक दैट्स व्हाई आई मेट विक्रम आल्सो, लाइक हम आईटी गुवाहाटी में इसी वजह से मिले थे कि लगा कि यार कि ठीक है, अभी शायद इससे उम्मीदें हैं, होगा, but ultimately that also didn't work out.
सो ट्रिपल आईटी हैदराबाद के लिए आप प्रिपेयर हुए, तो एक वो छोटी सी जर्नी के बारे में हम बात करना चाहेंगे, सुनना चाहूंगा मैं। स्टूडेंट्स को भी हेल्प मिलेगी, ताकि उनको भी, जो बहुत सारे बच्चे अभी गिरे हुए हैं, जो लग रहा है कि भाई कुछ नहीं होगा, अब तो साल खराब हो गया, फिर से प्रिपेयर करना पड़ेगा, उनको पता चले that they have another great opportunity, and in fact not only triple IT, there are other colleges as well, but right now ये जो है अपॉर्चुनिटी, क्योंकि ऑलरेडी आई गेस एप्लीकेशंस आर ऊपर शुरू हो चुके हैं, दे शुड बी अप्लाइंग, उसके लिए डिटेल वीडियो भी आने वाला है, ठीक है। तो विक्रम भाई, आप से शुरू करते हैं कि एग्जैक्टली व्हाट वाज दैट शॉर्ट जर्नी, वो जो 3 से 4 महीने की थोड़ी फ्रस्ट्रेशन रही होगी, जब तक नहीं पता चला कि हाँ ट्रिपल आईटी हैदराबाद इज द कॉलेज आई एम गेटिंग इन, तो वो थोड़ा right. So basically after the GATE score I come to know like where I landed, like मुझे पता चल गया था कि मैं कहाँ पे खड़ा हूँ, like कहाँ से कौन से कॉलेज मिल सकते हैं। like I was more towards like Triple IT Bangalore, Triple IT Delhi and Triple IT Hyderabad. I was targeting these 3 colleges, and Triple IT Delhi में I think थोड़ा जैसे college percentage और GATE score को मिला के उनका शायद से कुछ ऐसे short list बनता है। तो I applied for Triple IT Delhi, मैंने सोचा था चलो Triple IT Delhi शायद से मिल सकता है मेरे को, since my score was fine, like सही था। फिर बट आफ्टर गेट स्कोर ना, लाइक मेरा थोड़ा एप्टीट्यूड में खराब हो गया था, लाइक आई स्कोर्ड वेरी लो इन एप्टीट्यूड, बहुत ज्यादा फर्क आ गया था। तो आफ्टर दैट ना आई स्टार्टेड सर्चिंग फॉर ट्रिपल आईटी हैदराबाद की उसमें कैसा एग्जाम आता है, क्या होता है। सो ट्रिपल आईटी हैदराबाद में थोड़ा सा एक अच्छा खासा हिस्सा होता है, लाइक पार्ट होता है लाइक ऑफ एप्टीट्यूड एंड मैथ्स। तो फर्स्ट जर्नी वाज लाइक थोड़ा सा मैं कंफ्यूज था मुझे क्या करना है, कि इफ आई एम नॉट, आई नो मुझे कॉलेज नहीं मिलेगा कोई, लाइक आईआईटीज में तो नहीं मिलेगा, टॉप 8 आईआईटीज में तो नहीं मिलेगा, इंक्लूडिंग आईआईटी हैदराबाद, आई एम इंक्लूडिंग टॉप 7 प्लस आईआईटी हैदराबाद। सो आई वाज वेरी कंफ्यूज, मैं ये सोच रहा था कि लाइक आई लेफ्ट माय जॉब इन 2018 एंड 6 महीने का गैप लेके आए कि लाइक मुझे थोड़ा कॉन्फिडेंस था कि मैं गेट निकाल लूंगा इस साल एंड लाइक कर लूंगा कि जॉब के लिए जाऊं, बहुत कंफ्यूजन था कि अगेन अगर कुछ नहीं होता तो जॉब के लिए जाऊं, इनसिक्योरिटीज, राइट, कि एक साल और ड्रॉप हो जाएगा आपका ईयर में, एक साल ड्रॉप हो जाएगा, राइट। तो वो सोच रहा था जॉब के लिए जाऊं, या ट्रिपल आईटी हैदराबाद में नहीं हुआ, लाइक पीपल स्केयर यू, लाइक ट्रिपल आईटी हैदराबाद का भी इट्स अ टफ प्रोसेस टू गेट इनसाइड, थोड़ा कंफ्यूजन था। बट उनको असाइड करते हुए आई स्टार्ट प्रिपेयरिंग थोड़ा सा ऑन द मैथ साइड एंड एप्टीट्यूड साइड, लाइक फॉर ट्रिपल आईटी हैदराबाद। अपार्ट फ्रॉम दैट थोड़ा सा मैं एआई की तरफ भी ड्रिवन था, तो एआई के लिए भी पढ़ रहा था मैं, आई स्टार्टेड द लेक्चर्स ऑन द लीनियर अलजेब्रा लाइक फ्रॉम गिलबर्ट स्ट्रैंग, एंड उनके लेक्चर्स चालू करे थे थोड़ा बहुत, एंड थोड़ा सा इधर रहा था। और थोड़ा ट्रिपल आईटी दिल्ली का मैंने उस टाइम फॉर्म भर दिया था, एक्चुअली वो शायद मार्च में आ जाता है, मुझे याद नहीं आ रहा, शायद मार्च या फेब में आ जाता है उनका फॉर्म, तो वो भर दिया था उनका, मैंने अप्लाई कर दिया था। फिर ट्रिपल आईटी बैंगलोर का तो बहुत लेट आता है। फिर आई थिंक अप्रैल में ट्रिपल आईटी हैदराबाद का एग्जाम हुआ था, तो या वो प्रिपेयर करा एप्टीट्यूड, तो आई वाज सो कॉन्फिडेंट कि मेरा एप्टीट्यूड अच्छा होगा, टेक्निकल में मेरे को इतना प्रॉब्लम नहीं होता था, टेक्निकल वाज फाइन फॉर मी। तो या आई मीन ट्रिपल आईटी हैदराबाद का फिर प्रिपेयर करा एंड या प्रिपेयर फॉर द एग्जाम, एंड या दैट वाज माय टिल दैट जर्नी। पर मेरा एक साइड में दिमाग में रहता था कि जॉब का तो रखना है, कि अगर कुछ भी नहीं हुआ तो एटलीस्ट, मेरा मन था डेटा साइंस की तरफ ड्रिवन होने का, बट आफ्टर दैट समथिंग हैपेंड इन द कॉलेज एंड आई वेंट टू अ सिस्टम पार्ट साइड। सो या वो मुझे कॉलेज में परस्यू किया। बेसिकली मेरा जर्नी सिक्योरिटी से चालू हुआ, आई वाज इन अ एप्लीकेशन सिक्योरिटी, देन डेटा साइंस की तरफ ड्रिवन हुआ, देन आई वेंट टू अ सिस्टम पार्ट, क्योंकि कुछ चीजें मैं आई विल टेल यू लेटर, बट या समथिंग हैपेंड वेंट टू अ सिस्टम। या दिस वाज माय जर्नी फॉर द आई वेंट फॉर दिस 3 to 4 मंथ मैंने ये सब कुछ किया, फ्रॉम फरवरी to that April and May part, मई में इंटरव्यूज होते हैं, जून में इंटरव्यूज होते हैं, मई में रिजल्ट आता है, जून में 1 महीना आपको मिलता है। तो वो मैं आपको मई तक का जर्नी बता रहा हूँ। मई में तो मैंने सब छोड़ दिया, क्योंकि एक होप दिखा, ट्रिपल आईटी का जब रिटर्न निकला एंड आई सॉ दैट होप, हो सकता है मेरा। तो आई स्टार्टेड आस्किंग माय सीनियर्स और जो भी पढ़ रहे हैं कि कैसा होता है, क्या होता है, एंड आई स्टार्टेड दैट 1 month आई प्रिपेयर फॉर दैट इंटरव्यू। Okay. Ayush, now you can tell me about your part, the lowest part, और वो जो सिचुएशन होती है ना, क्योंकि वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है कि आपको लग रहा है कि यार हो गया, अब क्या करें, अब कैसे बेटर कर सकते हैं, तो वो सिचुएशन से निकलना और एक वो बाउंस बैक करना, देन वही रीस्टार्ट, तो थोड़ा सा होता है, तो वो पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट बनता है। तो कैसे आयुष, आप भी? तो लाइक गेट का जब पेपर हो जाता है तो कहीं ना कहीं आपको पता, उसी दिन पता होता है आपको कि आपका पेपर कैसा गया है, तो पता चल चुका होता है, राइट।
ठीक है, आंसर शीट तो बाद में आता है, और इवन गेट ओवरफ्लो प्रेडिक्टर का भी जो यूज करते हैं लोग, तो वो भी बाद में होता है, बट पेपर के दिन आपको गट फीलिंग हो जाता है यार मेरा कैसा गया। तो मेरे से हो गई थी कुछ गलतियां काफी, मतलब मैं समझ गया था गलतियां हो गई, मैं लाइक कि ठीक है अब तो हो गया ना, अब क्या कर सकते हैं। तो आई थिंक 10 दिन में 10 दिन में आपका रिस्पॉन्सेज आ जाते हैं, गेट एग्जाम के 10 दिन बाद आपके रिस्पॉन्स आ जाते हैं, और आई थिंक नेक्स्ट 5 डेज में गेट ओवरफ्लो प्रेडिक्टर सैचुरेट हो जाता है एंड आपको अपने, एंड इट्स क्वाइट एक्यूरेट। हाँ, अगर आप यूज करो तो अगर आपका रैंक अगर वो बता रहा है 700 to 750 है, तो उतना ही रहता है, या तो लाइक आपका रह जाता है वो। सो अच्छा, मैंने क्योंकि 2 बार गेट के लिए चांस लिया था, तो दूसरी बार तो मैं बहुत कॉन्फिडेंट था और मेरा बहुत अच्छा स्कोर्स भी आ रहे थे मॉक टेस्ट में, बट अगेन वही वाली बात है ना कि सिंगल डे सिंगल थ्री डे 3 hours आवर्स हो जाता थ्री है आवर्स लिटरली। तो बहुत सारी ठीक है, चीजें इट करना। हैपन। आई मीन मैं इसमें कहूंगा कि प्रेशर हैंडल करना भी आना चाहिए। एग्जैक्टली। तैयारी करना इज अ डिफरेंट पार्ट, बट अगर आप वो इस उस 3 पार्ट में यू कैन हैंडल दैट प्रेशर वेल, एंड प्रेशर इज नथिंग बट आपके माइंड का वॉइस होता है वो इंटरनल, एग्जैक्टली। नथिंग नथिंग मोर देन दैट। दुनिया तो वही है, सूरज तो उस दिन भी वैसे ही निकला है जैसे बाकी दिन निकलता है, एग्जैक्टली। कोई अंतर होता नहीं है। तो वो आपके माइंड में होता है कि यार ओके बाकी लोग क्या सोचेंगे, मेरे को खैर एग्जैक्टली। मेरे को तो 2 साल हो गया था ड्रॉप करे हुए, मेरा तो 2 साल का ही है, ड्रॉप भी है, जॉब भी छोड़ा मैंने, तो या सो इट्स ऑल योर माइंड चैटर, यू हैव टू आंसर। तो ठीक है भाई, अब हो गया तो देखा तो पता चला कि यार रैंक में तो ज़्यादा इम्प्रूवमेंट दिख नहीं रहा है इस बार। तो मैंने कहा यार कि ठीक है चलो अब ड्रॉप, तो आई वाज क्लियर यार इस साल अब एक और चांस तो नहीं लेंगे। ठीक है, अब जो कॉलेज मिलेगा जो भी है बेस्ट अटेम्प्ट देंगे, ठीक है, हो गया ठीक है, एग्जैक्टली। ट्राई मार दो। तो आई थिंक मार्च से जो है ना एप्लीकेशन फॉर्म्स रोल आउट होना, आई थिंक सबसे पहले ट्रिपल आईटी दिल्ली का रोल आउट हो जाता है, ट्रिपल आईटी दिल्ली का रोल आउट हो जाता है एप्लीकेशन फॉर्म, देन शायद मार्च के एंड में क्लोज होता है ट्रिपल आईटी हैदराबाद का, एंड आपका जो अब ट्रिपल आईटी कौन सा, अभी दिल्ली अगर बात करें दिल्ली तो अभी ट्रिपल आईटी का तो अभी निकल चुका है, लाइक एंड अप्रैल स्टार्ट इज द लास्ट डेट। अप्रैल, हाँ हाँ, अप्रैल से तो आपके रिटर्न शुरू हो जाते हैं, मोस्टली हाँ, सबके हाँ, हाँ। स्क्रीनिंग राउंड शुरू हो जाते हैं, तो आपके मार्च इज द विंडो कि जिसमें आपको थोड़ा एक्टिव रहना पड़ता है, यू हैव टू सी, एंड आई थिंक गेट का पेपर फेब के फर्स्ट सेकंड वीक में होता है, मार्च 16 आई थिंक आई हैव बीन ऑब्जर्विंग इज दैट हम्म। गोल्डन डेट जिस दिन गेट रिजल्ट डिक्लेयर होते हैं एंड ऑफिशियली यू कम टू नो कि हाँ क्या रिजल्ट आया है मेरा। तो हम्म। ठीक है, मार्च में आप कॉलेजेस में अप्लाई करते हो, तो मैंने भी ट्रिपल आई टी सारे ट्रिपल आई में अप्लाई कर दिया था, और मैंने इवन मुझे पता था कि मेरे को आरए का ऑप्शन भी मिल सकता है, तो मैंने आईएससी का आरए और ट्रिपल आईटी हैदराबाद का आरए, क्योंकि जो मेरा स्कोर बैठ रहा था, मैंने उसके लिए भी अप्लाई करा था। मैंने कहा ठीक है, चांस छोड़ेंगे कुछ भी नहीं, पहले हम्म। चांस ट्राई मारते हैं, ठीक है जो हाथ हम्म। लगेगा देन डिसाइड करेंगे कि क्या रिजेक्ट करना है क्या नहीं करना। एग्जैक्टली। तो ठीक है, अब फिर उसके बाद आई थिंक मेरा ट्रिपल आई टी दिल्ली में तो डायरेक्ट गेट स्कोर से हो गया था, फर्स्ट राउंड फर्स्ट लिस्ट में ही मेरा नाम आ गया था, ओके। तो उसमें, और इवन ट्रिपल आई टी बैंगलोर में भी वैसे ही था, हम्म। गेट स्कोर से ही मेरा डायरेक्ट हो गया था, फर्स्ट लिस्ट में आ गया था। हम्म। तो मुझे अभी भी याद है कि ट्रिपल आई टी हैदराबाद का एग्जाम अप्रैल लास्ट में हुआ था, एंड सेम पैटर्न रहता है गेट का। तो मैंने कुछ खास, मैंने प्रिपरेशन एक्चुअली छोड़ दी थी, मैं इतना डीमोटिवेट हो गया था, मैंने प्रिपरेशन छोड़ दी थी। बट वही वाली बात होती है कि आपने जब कोई चीज बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर करा होता है ना, आप कितना ही छोड़ दो, 2+2 अपना आपने अगर पूरे साल करा है तो आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं होती है, right? एग्जैक्टली। हाँ स्पीड एंड एक्यूरेसी की बात होती है, बट अगेन आपने एक पेपर अभी 2 महीने पहले ही दिया, और 2 महीना का आप अगर प्रैक्टिस नहीं भी करते और अगर आपके कंसेप्ट ग्रिप अच्छा है, तो आई डोंट थिंक कि अगर आपने प्रिपरेशन छोड़ भी दे तो फर्क पड़ना चाहिए। खैर, But तो yeah, मैंने sorry to interrupt. Right now, I would like to add a point to the students कि ठीक है, जैसे कि आयुष भाई ने बताया कि आप मतलब उन्होंने छोड़ दिया and still he could score, but that is not valid for every student. आप भी थोड़ा ध्यान रखिए। पता चला आयुष भाई से मोटिवेट होकर के आप बस सोच रहे हैं कि एग्जाम डेट का आप इंतजार कर रहे हैं कि हम जाएंगे और फोड़ के आएंगे। यू शुड नॉट बी डूइंग दैट, ठीक है। रिस्क होता है, ठीक है, और
आई होप यू नो कि भाई अब और ज्यादा आपको डिले नहीं करना चाहिए अगर आप चाह रहे हो कि इसी साल एडमिशन लेना है, ठीक है। क्योंकि हर बच्चे के लिए ऐसा नहीं होता है कि भाई जो पढ़ा हुआ उसको एग्जैक्टली सब छपा हुआ है, ठीक है। कुछ बच्चों का ऐसा होता है कि उनको बार बार रिवीजन करना पड़ता है, ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्विंग बार बार करनी पड़ती है। अगर वो नहीं करोगे तो वो स्किप आउट हो जाएगा, कॉन्सेप्ट भी आप भूलने लगोगे, ठीक है। तो आयुष भाई इज अ बिट डिफरेंट केस। अगर मैं यहाँ पे बोलूँ, जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ हर इंटरव्यू के लिए, जो भी आपको बताया जा रहा है आपको वो एग्जैक्टली फॉलो नहीं करना है। देयर इज समथिंग यू हैव टू ग्रैब फ्रॉम दैट कि आपके लिए कौन सा सूट करेगा। तो प्लीज बी माइंडफुल अबाउट दैट, ठीक है। तो आपको छोड़ना नहीं है, ठीक है, परेशान हो 10 दिन के लिए, टेक अ ब्रेक, जो करना है करिए, मूवी देखना है, जो करना है बिंज वॉच करिए, बट आफ्टर दैट फिर से लग जाना है, ठीक है। सो या सॉरी, Let me add one point on this one. Correct. Let me add one point. So basically, like after gate na, like mostly people are like very panic, like कि gate बिगड़ गया, and like rather than focusing on that, like इतना परेशान होने से अच्छा है छोड़ो, accept that thing, and then you just focus on like कहाँ मैं, like where you like went wrong. So it can be like on your technical subject, on your aptitude part, yeah, your speed and accuracy, or you're not able to handle pressure. तो उस चीज, वो 4 महीने आपको मिलते हैं like to prepare on that part. वो अगर आपने सही कर लिया, अपार्ट फ्रॉम दैट ऐसा नहीं बोलूँ सिर्फ उसको ही करना है, कीप द अदर थिंग ऑन द रिवीजन पार्ट। रिवीजन ऐसा होगा कि इफ यू प्रिपेयर फॉर गेट वेल ना, तो आपने कुछ नोट्स बनाए होंगे शॉर्ट नोट, उनको ही रिवाइज करते रहिए। ऐसा नहीं है कि लाइक यू आर गोइंग टू ट्रिपल आईटी तो इट्स जस्ट मोर टफ देन गेट, इट्स नॉट, इट्स वेरी वेरी डिसेंट पेपर। ट्रिपल आईटी हैदराबाद, ट्रिपल आईटी हैदराबाद में क्वेश्चंस बहुत सारे ज्यादा आते हैं, लाइक बहुत सारे, लाइक 50 इधर आते हैं, 50 इधर आते हैं टेक्निकल, तो पेपर इजी रहता है, बट क्वेश्चंस बहुत होते हैं ना। स्पीड इज अ मेन फैक्टर ऑन द ट्रिपल आईटी हैदराबाद पार्ट। बस ये फोकस रखना कि स्पीड अच्छा होना चाहिए, एक्यूरेसी अच्छा होना चाहिए। एंड ट्रिपल आईटी हैदराबाद में ऐसा होता है कि लाइक दो पार्ट होते हैं, एक होता है मैथ्स एंड एप्टीट्यूड, एक होता है टेक्निकल पार्ट। टेक्निकल पार्ट में टीओसी एंड कंपाइलर नहीं होता है ना। अभी मेरे टाइम तो नहीं था, अभी मुझे सिलेबस पता नहीं है। तो आपको दोनों को इंडिविजुअली क्रैक करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आपका एक खराब गया एक अच्छा गया, तो ओवरऑल नहीं देखेंगे, दोनों आपको इंडिविजुअली निकालना पड़ेगा। एंड ऑफ कोर्स कि हमको नहीं पता उनका एलिजिबिलिटी क्या होता है, वो लोग क्या देखते हैं, किसी को नहीं पता। ट्रिपल आईटी हैदराबाद की जब लिस्ट आती है इंटरव्यूज की, तो नो वन नोस लाइक पीजीडब्ल्यू की कैसे उन्होंने निकाला। बट एज पर वी हर्ड लाइक कि दोनों में आपका निकलना ही चाहिए, इंडिविजुअली आपका कट ऑफ निकलना चाहिए, जो मैथ्स एंड एप्टीट्यूड है एंड टेक्निकल है। तो ये चार्ज जाते हैं, इट्स वोंट बी टफ। आप गेट का ही सिर्फ पढ़ोगे ना, सिर्फ गेट का फोकस करोगे, बिल्कुल ऐसे हाई लेवल क्वेश्चंस नहीं करोगे, सिर्फ गेट पे फोकस रखोगे, तो यू विल एबल टू क्रैक इट द एग्जाम। दैट्स द थिंग। या आयुष। I would like to add, जैसे सचिन ने बोला कि आपको प्रिपरेशन नहीं छोड़ना है, एडेड टू दैट कंटेक्स्ट मुझे 2 साल हो गया था प्रिपेयर कर, तो 2 साल से मैं सेम चीज पढ़ रहा हूँ। तो ठीक है, अगर मैं रिवाइज नहीं भी करूंगा तो मुझे फर्क। एंड आई स्टिल रिमेम्बर कि जब मैं एग्जाम दे रहा था, मुझे क्वेश्चंस एग्जैक्टली याद थे कि यार अरे ये तो गेट 1997 का था, इसका आंसर ये। इवन मुझे वैल्यूज तक याद था, अगर वैल्यू चेंज हुआ है तो मुझे ये याद था यार ये मुझे रिकम्प्यूट करना पड़ेगा, मैं ऐसे ऑप्शन सेलेक्ट नहीं कर सकता। तो मुझे, सो इट्स लाइक दैट, है ना। अगर आप फ्रेशर हो, आपने अभी 6-7 महीना पहले तैयारी कर रही है, आपको ज्यादा स्पीड के लिए आपको बूस्ट करना पड़ेगा। आप ऑलरेडी ड्रॉपर रह चुके हो, फिर से आपने ड्रॉप करा, तो ठीक है, आपको कम रीजन। तो वही मतलब सचिन वही कहना चाह रहे हैं कि आपको एक स्मार्ट वे में कैलकुलेट करना है कि आपको कितना रिवीजन की जरूरत है, क्योंकि द थिंग इज द एग्जाम इज ऑल अबाउट स्पीड एंड एक्यूरेसी। तो जितना आपका ग्रिप रहेगा टॉपिक्स पे, तो उतना आपका स्पीड रहेगा, उतना आपका बेटर। देखिए, इट्स अ फेयर कंपेटिटिव वर्ल्ड, आपसे कोई बेटर है उसका ज्यादा जल्दी सिलेक्शन होगा, आप उससे पीछे हो तो आपका बाद में होगा, राइट। तो आपको क्या करना है, आपको बस अपनी प्रिपरेशन बेटर करनी है, सिंपल, और कोई तरीका नहीं, देयर इज नो वे आउट, राइट। एंड यस, एज विक्रम पॉइंटेड कि इंस्टेड ऑफ स्टूडेंट्स गेसिंग कि यार मैथ्स में वेटेज ज्यादा रहेगा या टेक्निकल में वेटेज ज्यादा रहेगा, ये फोकस कर लेते हैं। आपने जैसा गेट का प्रिपरेशन करा है, आप अपना प्रिपरेशन वैसे ही रखो, सारे सब्जेक्ट्स को इक्वल इंपॉर्टेंस दो। एंड आई थिंक अभी क्योंकि गेट का पेपर होके चुका है, राइट, एंड आपके शॉर्ट नोट्स बने होंगे, यू जस्ट कीप रिवाइजिंग योर शॉर्ट नोट्स। एंड मैं तो बोलता हूँ जितना मॉक टेस्ट इज द वेरी ग्रेट वे टू कीप रिवाइजिंग द कंसेप्ट, क्योंकि जब क्वेश्चन आता है तो आपको ये लगता है कि यार अच्छा ये कंसेप्ट तो मैंने पढ़ा है, यू स्टार्ट अप्लाइंग दैट। तो जितना बार आप वो कंसेप्ट को अप्लाई करते हो ना, वो कंसेप्ट आपके ब्रेन में सीमेंट होता चला जाता है, राइट। सो माय बेस्ट एडवाइस इज कि आप शॉर्ट नोट्स, आप रिवीजन की साइकिल को कंटिन्यू रखो। एंड जितने आप मॉक टेस्ट दे सकते हो आप मॉक टेस्ट दे दो, कंसिडर कि आपका गेट का पेपर फिर से होने वाला है एंड आपको दोबारा शॉर्ट हो ही देना है। एंड आई थिंक दैट्स द बेस्ट मंत्रा किसी भी एग्जाम को क्रैक करने का, बी ट्रिपल आई टी हैदराबाद या दिल्ली, कोई भी एग्जाम है।
क्योंकि सिलेबस वही रहता है, कोई थोड़ा बहुत वेटेज ऊपर नीचे हो सकता है, बट गेट के सिलेबस से बाहर तो नहीं जाएगा। एंड गेट का सिलेबस आपने कवर करा है तो आई थिंक दैट इज फाइन, वेल इनफ। और बस ठीक है, अच्छे मैं से रिवीजन मानता की हूँ जरूरत कि हाँ, मैं मानता हूँ, मैं समझ सकता हूँ कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं, फ्रेश फाइनल ईयर वाले होते हैं या ड्रॉपर्स होते हैं जिनके सब्जेक्ट पूरे नहीं हो पाते हैं गेट तक। तो अब आपके पास वो टाइम है, आपको पता है कि अगर उस सब्जेक्ट की इम्पोर्टेंस है, उस सब्जेक्ट से अच्छे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो आप उस सब्जेक्ट को कवर करने का एटलीस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक तो कवर कर सकते हो ना उस सब्जेक्ट से। है। जैसे अगर मैं बात कहूँ, जैसे काफी बच्चे कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन आर्किटेक्चर छोड़ देते हैं, उसको एक टफ सब्जेक्ट मानते हैं, बट मेरे हिसाब से जो सबसे इजी स्कोरिंग टॉपिक होता है वो होता है कैश मेमोरी वाला। उसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन भी आते हैं, तीन टाइप के, शायद 3 या 4 टाइप के कैश होते हैं। मैं भूल गया, काफी टाइम हो गया, बट हाँ, फिक्स्ड होता है कैसे होता है, बट एक बार आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया, वेरी इजी टू स्कोर मार्क्स। और पता है, सबको पता है कि कैश मेमोरी के क्वेश्चन आने ही आने हैं। एग्जैक्टली। पाइपलाइन मैं मानता हूँ थोड़ा कॉम्प्लेक्स टॉपिक है उसका, बट ठीक है, पाइपलाइन में भी सारे कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन तो नहीं आएंगे, कुछ कुछ इजी भी आते हैं, तो वो भी आप कर सकते हो। तो कहने का मतलब है, जो आपका प्रिपरेशन छूट गई, जो आपको लगता था कि यार आपके गैप्स हैं, आपके पास एक गोल्डन पीरियड है 2-3 महीने का, जिसमें आप अच्छे से उसको कवर अप कर सकते हो और आपकी प्रिपरेशन और बुलेट प्रूफ हो सकती है और आपके चांसेस ऑफ सिलेक्शन बढ़ सकते हैं। तो ठीक है, जो हो गया सो हो गया, लेकिन इट इज नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड, गेट इज नॉट ऑफ द एंड ऑफ द यस, वर्ल्ड। एग्जैक्टली। there are many also good opportunities, and as long as you are you know giving the best version of yourself, opportunity कभी lose होती नहीं है एक्चुअली लॉन्ग टर्म में, अगर आप पूछें। या सो जैसे कि आयुष ने बताया, तो मैं गुड न्यूज़ देना चाहूंगा स्टूडेंट्स को। जैसे कि अभी सीईओ के लिए बता रहे थे, कंप्यूटर आर्किटेक्चर ऑर्गेनाइजेशन, तो अभी नहीं है वो सिलेबस में ट्रिपल आईटी हैदराबाद के में। ठीक है, तो डरने की जरूरत नहीं है अभी, अगर आप पैनिक कर रहे थे कि जब भाई बता रहे थे। हाँ, और ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट था कि आपको ना लिटरली सब्जेक्ट कोई भी नहीं छोड़ना चाहिए, कोई भी हो, क्योंकि हर सब्जेक्ट में कुछ ना कुछ इजी टॉपिक्स डेफिनेटली रहेंगे। ठीक है, विच विल बी स्कोरिंग, डायरेक्टली बनता है क्वेश्चन। ठीक है, तो वो आप डेफिनेटली टारगेट कर सकते हो। ठीक है, सो दैट वाज द पॉइंट ओवर हियर। अच्छा, अभी मैं डिस्कस करना चाहूंगा एग्जाम के बारे में। ठीक है, ये पता चल गया कि आपने जो विक्रम भाई को पता था कि उनका एप्टीट्यूड पार्ट थोड़ा सा मैसअप हो गया था गेट में, सो ही फोकस्ड ऑन दैट। और आयुष को पता था कि ठीक है, दैट वाज नॉट माय डे, बट ठीक है, होगा बेटर। सो ही ऑल्सो, जो भी उन्होंने उस टाइम पे किया। तो ठीक है, आपका एग्जाम जब हुआ तो एग्जैक्टली हाउ वाज द लेवल, कि वो गेट से, जैसे कि विक्रम भाई ने वैसे शॉर्ट में बता दिया है कि गेट से थोड़ा नीचे ही रहता है, और नंबर ऑफ क्वेश्चन भी बताया, बट एक बार मैं फिर से चाहूंगा कि आप वो सारी चीजें थोड़ा थोड़ा फिर से बता दें एक बार। तो विक्रम भाई, या यू कैन टेल मी। So exactly the number of questions are like मुझे याद नहीं है, maybe it was 50-50, I don't remember. But the first part was, I remember, was like aptitude and maths में उन्होंने linear algebra, probability और थोड़ा discrete mathematics cover किया था, and aptitude तो normally cover था उसमें। तो it's तो और negative marking नहीं होती है, and single correct थे हमारे time में। I remember, I think अभी यही पैटर्न चल रहा है सिंगल करेक्ट का, बट आई यूज्ड टू नो लाइक बिफोर अस देयर यूज्ड टू बी मल्टीपल करेक्ट आंसर, बट मैंने अपने जूनियर से भी एक दो से पूछा, बट दे टोल्ड मी लाइक इट वाज सिंगल करेक्ट। बट यू नो, पैटर्न फिक्स नहीं है, आप ऐसे प्रिपेयर होकर मत जाना कि सिंगल करेक्ट होगा। तो अब मोस्टली ये होगा, बट यू नो नॉट श्योर, बट लास्ट पैटर्न से देखा जा रहा है कि लाइक इट इज ओनली अ सिंगल ऑप्शन करेक्ट वाला ही है बेसिकली पैटर्न। लाइक बी रेडी फॉर द सरप्राइज एंड प्रिपेयर फॉर योर लाइक, बस अपना टेक्निकल पे फोकस हाँ, कीजिए, अपना मैथ्स पे फोकस कीजिए, पेपर पे फोकस करना है। right. Apart from the second part was like technical, पूरा गेट वाला टेक्निकल, like OS कवर था, मतलब OS था, ये like pseudo codes थे, like you know data structure and algorithm, और थोड़ा C++ था, मतलब pseudo code था, ऐसा नहीं language specific नहीं था, it was a pseudo code only. And apart from that, I think algo, discrete, OS, and I TOC is think not there, I guess. कंप्यूटर नेटवर्क था, बट आई थिंक उसमें उस टाइम मैडम TOC का कंपाइलर नहीं था, दैट आई हाँ, रिमेंबर। नहीं, अभी भी नहीं है। हाँ, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन आल्सो आई डोंट रिमेंबर था कि नहीं था। OS था ना, एक्चुअली OS और CO थोड़ा मिक्स रहता था, तो दैट्स व्हाई आई एम कंफ्यूज कि CO था कि नहीं था। मैं एक्चुअली उनको एक थोड़ा वैसे ही ट्रीट करता था OS और CO को, बिट जब मैं रिलेटेड। रिवाइज करता था। हाँ, तो काइंड ऑफ ऐसा था। एंड या आई थिंक उधर भी ऐसे ही नंबर ऑफ क्वेश्चन सेम थे जो फर्स्ट पार्ट में थे, एंड 3 आवर्स टाइम, क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन बहुत ज्यादा रहेंगे, बट इट्स ऑल अबाउट एक्यूरेसी एंड स्पीड, मतलब आप उस टाइम पे कितना सोच पा रहे हो, कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पा रहे हो। नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल नहीं थी हमारे में, आई रिमेंबर नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल नहीं थी, तो दैट्स अ प्लस पॉइंट ऑन दैट थिंग। एंड या आई मीन इट्स अ 3 hour पेपर, एंड
फिर उसके बाद जो भी है, like it was that much I remember. I think Okay. Ayush can tell more about that. Yeah, Ayush, would you like to add anything to that? या आई थिंक पेपर 2 सेक्शन में डिवाइड होता है एंड एज लॉन्ग एज आप एक सेक्शन में हो यू कैन हॉप अराउंड इन द क्वेश्चन राइट उस सेक्शन, बट वंस यू मूव टू अनदर सेक्शन आप प्रीवियस सेक्शन में जा नहीं सकते. आई थिंक ऐसा होता था. So you have to complete a I'm not section first. आई थिंक पहले आपको, अगर आपने एप्टीट्यूड वाला कर लिया, आपका वो टाइमर चल रहा है 90 मिनट्स का राइट, ठीक है, इट माइट बी पॉसिबल आप 90 मिनट से पहले कर पाओ. अगर नहीं कर पाओगे आप, यू विल बी इवेंचुअली पुश्ड आउट टू द नेक्स्ट जो सेक्शन है आपका सब्जेक्ट पेपर सेक्शन राइट. सो लेट्स से जो एक मैं सभी को रेकमेंड करता हूँ, एक कॉमन तरीका होता है कि देखो आपकी प्रैक्टिस आपने इतना कर ली होती है तो आपको 30-40 सेकंड में समझ आ जाता है ये क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो जाएगा. जल्दी मतलब कि आप इसको नेक्स्ट 1 मिनट में सॉल्व कर पाओगे. आर यू वेरी श्योर? ओके, यू डू इट राइट अवे, आप कर लेते हो. सेकंड होता है ओके, हो सकता हो यू माइट नीड टू गिव अ मिनट टू थिंक यार क्या करना है इसमें, ठीक है, यू गिव इट. तीसरा होता है कि यार आई थिंक मुझे इसमें सोचना पड़ेगा ज्यादा, ठीक है मुझे समझ आ रहा है बट मुझे रिकॉल करने में टाइम लगेगा. ऐसे क्वेश्चंस को आपको तुरंत सॉल्व नहीं करना है. सो द आइडिया इज कि जो क्वेश्चन आप तुरंत सॉल्व कर सकते हो आप उनको सॉल्व करते चले जाओ एंड एक पूरा क्वेश्चंस का एक राउंड लगा दो. लेट से आपके पहले जनरल एप्टीट्यूड सेक्शन में लेट से 50 क्वेश्चन है. मैं कहता हूँ कि जो जो आप फटाफट सॉल्व करते जा रहे हो आप सॉल्व करते जाओ. जो आपको लग रहा है ये मैं सेकंड राउंड में सॉल्व करूंगा, एक होता है ना कंपाइलर, आप अपने आप को कंपाइलर बना लो. 2 पासेस में पेपर, 2 या 3 पासेस में पेपर को सॉल्व करना है. पहले पास में वो करना है जो बहुत ही आसानी से बिल्कुल फटाफट हो जाने हैं और आपको पता है यार इसमें तो मेरा मार्क्स ले जा ही नहीं सकता मेरे से कोई. दूसरे पास में आपने वो करना है कि यार ठीक है मुझे थोड़ा सोचना पड़ेगा, टाइम लगेगा, तो आपको बुकमार्क का भी एक सेक्शन होता है. वो आपको जो आपका एप्लीकेशन होता है, यू कैन बुकमार्क द क्वेश्चन, यू कैन कम बैक टू देम लेटर. तो वो फीचर आप यूटिलाइज कर सकते हो एंड आई वुड रिकमेंड कैंडिडेट्स. आई थिंक ट्रिपल आईटी हैदराबाद आपको इंटरफेस पोर्टल भी देता है. यू कैन प्रैक्टिस कि आप कैसे नेविगेट कर सकते हो. तो यू शुड ऑलवेज प्रैक्टिस एंड गेट वेल वर्स्ड विद दैट सॉफ्टवेयर बिफोर गोइंग टू राइट द एक्चुअल एग्जाम. एंड देन आपका एक बार ठीक है, आप ये राउंड रॉबिन तब तक कर सकते हो जब तक आप उस सेक्शन में हो. वंस यू मूव टू द अनदर सेक्शन तो प्रीवियस सेक्शन लॉक हो जाता है आपका, यू कैन नॉट मूव टू इट. और अदरवाइज अगर आपका टाइम एक्सपायर हो गया 90 मिनट्स का तो आप नहीं कर रहा हूँ. गिवन द नेगेटिव मार्किंग वाला थिंग, आई थिंक दिस टाइम देयर इज नेगेटिव मार्किंग. आई हैव ओपन्ड द ट्रिपल आईटी हैदराबाद सिलेबस स्ट्रक्चर. They have said that 25%, that means 1/4, is the negative marking for wrong answer. So I would advise candidates ki once check the official website of Triple IT Hyderabad, check the syllabus, check the subjects, check the marking scheme kya hai unka, and then take a call accordingly, right? So like for that I'll be creating a definite different video for sure guys. ठीक है, तो worry मत करना student. So just after this I'll be dropping another video with respect to that. ठीक है. So जितना भी समझ में आया कि ठीक है, just because number of questions ज्यादा हैं और number of subjects भी I guess कम है, जितना मैं देख पाया हूँ अभी तक गेट से कम है, गेट कंप्यूटर साइंस से, और नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा है, तो लेवल जो है थोड़ा सा आपका सही इजी रहने वाला है. अब मैं इसमें अगर पूछूं कि ऐसा कुछ था क्या कि आपको मेजॉरिटी क्वेश्चन इस सब्जेक्ट से देखने को मिल रहे हैं, या ऐसा कुछ कंपैरेटिव एनालिसिस इफ यू रिमेंबर कि कौन सा सब्जेक्ट ज्यादा क्वेश्चन किससे पूछे जाते हैं या फिर किससे बहुत कम आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं? विक्रम, आयुष, एनीबॉडी कैन स्टार्ट. So on the maths and aptitude side मेरे को linear algebra के questions दिखे थे अच्छे खासे, and aptitude के थे, मतलब mathematical side it was linear algebra dominating. और यहाँ पे like on the second part I saw like pseudocodes and OS and data structure and algorithm, उससे थोड़ा ज़्यादा target किया था comparatively to other subjects. तो हाँ मतलब pseudocodes बहुत सारे थे, data structures के questions थे, operating systems थे, but still you know can't say it, like हर साल वो depend करता है exam to exam, तो you can't say it actually कि कौन सा topic वो लोग ज़्यादा करेंगे. But still, I guess I am able to relate to it what you just said with respect to the OS DSA, because when I was going through the course curriculum as well, so yeah, the I should say mandatory courses are OS, and then it's like DSA. So yeah, I feel like yeah, what you said was a bit like, I don't know how much of that is correct, but still I feel the weightage is more about that कि हाँ OS से Right. OS से DSA से and linear algebra probability. So yeah, these would be in good amount. So Right. What do you feel like? Is it so, or do you have another kind of scenario?
mindset? I think मुझे exactly याद नहीं कि सेक्शन से ज्यादा थे because I treated everything to be equal. So again, everything to be equal तो consider करने ही, but at least what I would say कि to advise my all candidates हैं कि जो आपके strong subjects हैं, let them be bulletproof. वहां से तो marks नहीं जाने चाहिए, Exactly. right? एंड जो आपके वीक हैं, ट्राई टू मेक श्योर कि आपके एटलीस्ट मार्क्स लूज ना, क्योंकि यू हैव अ नेगेटिव मार्किंग नाउ इफ यू हैव, राइट? एटलीस्ट आपके उन टॉपिक से मार्क्स नहीं जाने चाहिए. इट्स ऑल अबाउट आल्सो एक्यूरेसी तो है, बट स्कोर भी है, राइट? लेट्स से आपने 40 क्वेश्चन करे, हम 40 में से 40 नहीं, सो आप तो फिर टॉपर हो पेपर के लिए, राइट? क्योंकि अगर आप कोई भी 40 नहीं कर पाया, 40 के 40 आपने सही कर, तो यू आर टॉपर, राइट? सो दैट्स द स्ट्रेटेजी. स्ट्रेटेजी आपको एक्यूरेसी आपको बिल्ड करनी है कि आपके जो स्ट्रॉन्ग है वो उसमें आपका कोई डाउट नहीं होना चाहिए, और जो आपके वीक हैं वो आपको कवर अप करनी है. बट स्टिल आई थिंक जो मेजर पोर्शन पूछा जाता है पेपर में, सो ओएस इज डेफिनेटली ओएस एंड सी प्रोग्रामिंग एंड डेटा स्ट्रक्चर्स के क्वेश्चन जरूर आते हैं. काफी सारे अच्छे क्वांटिटी में रहते हैं. डिस्क्रीट मैथ्स का मुझे याद नहीं आ रहा, आई एम नॉट एबल टू रिकॉल डिस्क्रीट मैथ्स के कितने क्वेश्चन थे. डेटाबेस के भी थे. नेटवर्क के काफी आसान क्वेश्चन आते हैं. नेटवर्क के यूजुअली मैंने नोटिस करा है गेट में टिपिकल क्वेश्चन आते हैं, जिसमें 2 मार्क्स वाले स्पेशली कुछ कुछ बहुत ही सोचना पड़ता है कि क्या सिनेरियोज होंगे. बट ट्रिपल आईटी हैदराबाद के पेपर में नेटवर्क के बहुत सिंपल क्वेश्चन रहेंगे, तो आई थिंक वो और एक मुझे अभी भी याद है, आई थिंक नेटवर्किंग में आईपी एड्रेस वाले क्वेश्चन बहुत इजी टू स्कोर होते हैं. वो तो बिल्कुल ऐसा होता है कि यार ये तो टॉफी बड़ी उठा लो टेबल से, तो वो क्वेश्चन में तो मार्क्स नहीं जाने चाहिए, है ना? वैसे क्वेश्चंस अगर आते हैं कि भाई सब नेटिंग में इसका एड्रेस रेंज क्या होगा, ये सब चीज, तो यस आई थिंक गेट से लेवल कम होता है, बट वेरी स्कोरेबल. बस माइंड में ये रखना है कि क्वेश्चन ज्यादा हैं और टाइम कम है, तो ज्यादा टाइम अगर लग रहा है कि किसी क्वेश्चन में आपको सोचना ज्यादा है, यू हैव टू थिंक मोर, डोंट स्पेंड टाइम ऑन इट, रादर एक फुल लूप आप कर लो, तो हो सकता हो कि जो इन क्वेश्चन में आप स्कोर करने वाले हो वो आपके एंड क्वेश्चन के स्पेक्ट्रम में थे, और आपने अपना टाइम शुरू के क्वेश्चन में लगा दिया, फिर आपको रियलाइज हुआ यार अरे यार मेरा गोल्ड माइन तो एंड में था. तो मैं एडवाइस यही करूंगा कि हैव अ फुल राउंड, एक फुल ओवरव्यू ले लो पिक्चर का, मतलब पेपर का क्या है कैसे, एंड देन ट्राई टू स्कोर अकॉर्डिंगली. Okay. So anything like would you like to add, Vikram, and or is it enough with respect to the exam कि ठीक है कौन कौन सा सेक्शन है, और हमने बात कर लिया कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस के बारे में बात किया, और हमने लेवल ऑफ क्वेश्चंस के बारे में बात किया. So we have discussed enough about that, but still if you would like to add, you can add, and then we'll be moving towards the next section, towards the course curriculum structure and all that stuff. आई थिंक आयुष ने सब कवर किया, बट आई रिमेम्बर नाउ लाइक यू नो कि थोड़ा सा डिस्क्रीट था, लाइक डिस्क्रीट क्वेश्चन से डिस्क्रीट के 1-2 क्वेश्चंस थे, ज्यादा नहीं थे, वो टेक्निकल पार्ट में थे, लाइक ऑन द सेकंड पेपर साइड. तो या कुछ क्वेश्चंस थे, एंड लाइक या आई वांट टू ऐड इट दिस थिंग ओनली व्हाट आयुष सेड कि हाँ मतलब एक राउंड कर लेना, लाइक यू नो टू ऑल द क्वेश्चंस, कि आप ऐसा वेट मत करना उस क्वेश्चन के लिए, आपको 30 सेकंड्स में नहीं बनता है, जस्ट मूव ऑन एंड जस्ट कंप्लीट वन राउंड इन लाइक जितना भी आपका टाइम बनता है, फिर सेकंड राउंड के लिए आना, लाइक यू नो कि जो अटेम्प्ट नहीं किया जिसमें ज्यादा टाइम लग रहा है, टाइम इज सेव्ड. फिर थर्ड राउंड में ऐसा रखना कि एक बार देख लेना हाँ भाई मैंने सही किया कि नहीं किया, बट यू नो डोंट जस्ट चेंज योर आंसर लाइक दैट, कि पैनिक में मत चेंज करना, जस्ट कीप इन दैट वे. मैंने किया था ऐसा गेट में, तो आई लॉस्ट लाइक 4 मार्क्स इन गेट बिकॉज मैंने 2 आंसर सही मार्क किए थे, बट मैं पैनिक कर मैं उन पे बुक मार्क किया था, एंड लाइक आई पैनिक्ड एंड देन आई केम ऑन दैट क्वेश्चन, फिर आया और आंसर दोनों के चेंज कर दिए, एंड लूजिंग 4 मार्क्स आर बिग थिंग फॉर इन गेट, आई गेस. बहुत ज्यादा, तो डोंट डू लाइक दैट. Yeah, that's my suggestion. Okay, so students, like with respect to the exam we have talked about it, okay, कि कैसे क्या रहने वाला है और कैसे आप फिर से तैयारी शुरू कर सकते हैं, एंड क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और उसके ऊपर और भी डिटेल में वीडियो में बनाने वाला हूँ, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू एग्जैक्टली व्हाट इज द सिलेबस, कितने टाइम का कब होगा, वो सब हम बातें करेंगे, ठीक है. अभी हम और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं. तो the second thing is like why triple IT Hyderabad, like okay, let's see that if you are getting IITs as well, मतलब कब आपको लगता है कि ट्रिपल आईटी हैदराबाद ही आपको लेना चाहिए, क्योंकि लेट्स सपोज कि उतना भी अगर आपका बुरा स्कोर नहीं जाता है गेट का, एंड स्टिल यू आर गेटिंग सम IITs, सो व्हाट इज दैट बाउंड्री लाइन वेयर यू फील कि भाई ट्रिपल आईटी हैदराबाद, आई विल बी चूजिंग दैट फॉर बोथ ऑफ यू.
Yeah, so I will go first. So Triple ID Hyderabad, what I felt like, it's like coding curriculum is best. Like, you Yeah. will find the best coder in the like here like in Triple ID Hyderabad. तो उसका जो curriculum होता है, like starting curriculum जैसे start होता है, like it's like first semester is थोड़ा like for MTech is थोड़ा tough, I would say. Like वहाँ पे कोडिंग आप करते हो, आपका कोडिंग एक कोडिंग लैब लगता है, एक सब्जेक्ट होता था हमारा एडवांस एल्गोरिथम। मुझे सब्जेक्ट का एग्जैक्टली नाम नहीं याद है, बट उसमें एडवांस एल्गोरिथम होता था। तो उसमें क्या 25% वेटेज होता था कोडिंग के लिए, तो आपकी 25 लैब्स लगती थी कोडिंग में, उसमें आप 3 आवर्स यूज टू डू अ कोडिंग। आपके जो सीनियर्स हैं वो टीएस होते थे एंड दे यूज टू कंडक्ट दैट लैब एवरी वीक, वंस अ वीक। तो आप 6 मंथ में आई थिंक 25 लैब्स हो जाती थी, पर लैब का 1% होता था। तो उसमें आपको बहुत रिगरसली आपको कोडिंग कराई जाती थी, लाइक यू आर। और उस टाइम हमारे टाइम में ऐसा था कि कोडिंग कल्चर आ रहा था एंड इट वाज नो, इतना नहीं था कि लाइक आप कोडिंग सब करते थे उस टाइम। अभी तो बहुत ज्यादा हो गया है, यू कैन सी एवरीवेयर लाइक कोडिंग चैनल्स एंड एवरीवन इज टीचिंग कोडिंग। उस टाइम इतना चालू हो रहा था, इट वाज इन अ वेरी इनिशियल फेज। उससे पहले कोडिंग करते थे, पर ऐसे कुछ ऑनलाइन क्लासेस नहीं थी, ऐसा कुछ ऑनलाइन इतना बड़ा डोमेन नहीं था, प्लेटफॉर्म नहीं था। तो लाइक वो सबसे अच्छा था। लाइक फर्स्ट सेमेस्टर में आपको बहुत सीनियर्स ने आपको बहुत लाइक ऐसे ऐसे असाइनमेंट्स दिए। लाइक आई यूज्ड टू आस्क माय फ्रेंड्स ऑन द अदर आईआईटीज, लाइक उनका इतना उनके में ऐसे असाइनमेंट्स होते बट इतने टफ में नहीं होते थे। लाइक हमारे में बोनस क्वेश्चंस ऐसे होते थे, लाइक कि एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जाते थे वो लोग हर चीज को। लाइक कुछ भी अगर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स या कुछ भी असाइनमेंट्स होते थे। So yeah, I mean first semester हमने जिसने like whoever survived in the Triple ID Hyderabad or MTech, फिर second semester से ऐसा होता था कि subjects are audited, you are joining with the like you are joining that class with BTech, MTech, MS, सब लोग होते थे यूज mix टू हो होता था जाते like हैं, थोड़ा लेवल से भी यूज टू हो जाते हैं कि वो ठीक है, right right right। करिकुलम भी आप अडेप्ट कर हाँ, क्योंकि लेते हो। फर्स्ट सेमेस्टर में ऐसा होता है ना कि एक तो करिकुलम आपका टफ है, क्योंकि आपने पूरे बिल्कुल अलग ही देखा है। क्योंकि क्या होता है, मैं जैसे बीटेक कॉलेज से आया, वहाँ पे बहुत थ्योरेटिकल होता था एंड लाइक यहाँ पे वो थ्योरी को इतना इंपॉर्टेंस ना देके इट्स अ प्रैक्टिकल मोड, लाइक असाइनमेंट्स और प्रोजेक्ट्स के ज्यादा मार्क्स होते थे। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट दे विल मेक श्योर कि प्लेगरिज्म नहीं हो, तो यू आर मेकिंग योर ओन कोड एंड एवरीथिंग। तो ये सब होता था, तो थोड़ा फर्स्ट सेमेस्टर इज लाइक आपको एडजस्ट होने में टाइम लगता था, देन इट्स यूज्ड टू। और फर्स्ट सेमेस्टर में भी ऐसा होता था कि लाइक कंपनीज आर कमिंग फॉर इंटर्न एंड यू आर अपेयरिंग फॉर दैट कंपनीज, बट आपका नहीं निकल रहा है, तो थोड़ा डाउन टाइम होता था। आपको लगता है कि गेट इज अल्टीमेट, आप निकाल लिया तो यू आर सेटल्ड, ऐसा नहीं है। असली जर्नी यू विल कम टू गो इन द कॉलेज ओनली। फर्स्ट सेमेस्टर में आपको समझ में आता है लाइक कि व्हाट्स द लेवल, वो तो स्टार्टिंग होता है। बट सेकंड सेमेस्टर से थोड़ा लाइट हो जाएगा, यू यूज्ड टू हो जाओगे आप एंड लाइक यू नो हाउ टू डू इट द थिंग्स। सो या आई मीन दैट्स माय लाइक जर्नी ऑन द पार्ट ऑफ द ट्रिपल आईटी की कैसा लगा मेरा फर्स्ट सेमेस्टर। बाकी सब सही हो जाता है सेकंड सेमेस्टर से इफ यू सर्वाइव दैट पार्ट। ओके 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 ओके। सो स्टिल लाइक मतलब वही अभी दैट पार्ट इज स्टिल बिट अनआंसर्ड कि आईआईटी भी अगर मैं बात करूं कि कौन से ऐसे आईआईटीज हैं जिससे आप ऊपर रखोगे ट्रिपल आईटी हैदराबाद को, अगर आप कंसीडर कर रहे हो, क्योंकि बहुत सारे बच्चे दे रहे होंगे, उनका गेट स्कोर भी ठीक ठाक आ रहा होगा, ठीक है, और ट्रिपल आईटी हैदराबाद भी देंगे। सो एक रहता है कि ठीक है, विच वन शुड आई बी चूजिंग, ये रहेगा बहुत बार। तो वो वाला पॉइंट मैं थोड़ा सा पूछना चाह रहा था आई कि वोंट से लाइक कि किसी आईआईटी से कम है। लाइक आईआईटी तो आईआईटी है, लाइक इट्स डेफिनेटली लाइक यू आर है ना, बट आई वोंट से इट्स लेसर देन आईआईटी बिकॉज इसका करिकुलम एंड द वे द प्लेसमेंट दे आर कंडक्टिंग, दैट्स अ वेरी एफिशिएंट वे। मैं आईआईटी से कम नहीं रखूंगा, इट्स अ टियर 1। एंड आपको ऐसा होता है ना कि कंपनी आपके कॉलेज में आ रही है बट उसका पैकेज नहीं दे रही टियर 1 वाला। लाइक गूगल अगर तो कुछ टियर 2 कॉलेजेस में जाती है बट पैकेजेस सेम नहीं होते। ऐसा यहाँ नहीं होता ट्रिपल आईटी में। Triple IT is a tier 1 college. You will get the same placement scenario which you are getting in IIT. IIT में थोड़ा मे बी चीजें अलग होती होंगी, but Triple IT I will keep with the same, like with the top 7 IITs, the Triple IT also. So ओके। nothing, I won't make any difference on that part. So basically, if you're not getting top 7 IITs and then you are getting Triple triple IT, IT Hyderabad, just go for triple IT triple, Hyderabad. That's what you're saying. yeah, Okay, that's okay, enough. okay. What about you, Ayush? Like, what do you think? And with respect to why I triple IT Hyderabad, yeah, that was the question basically. यस, सो लाइक प्राइमरी डिफरेंस अगर आप किसी भी दो, आप एक दो एलुमनाई ले लीजिए, एक ट्रिपल आईआईटी का ले लीजिए, एक ट्रिपल आईटी हैदराबाद का ले लीजिए। तो द प्राइमरी डिफरेंस जो आता है इन द वे करिकुलम डिजाइन है। आईआईटी का करिकुलम इज डिजाइन लाइक कि ईयर 1 में आपको सब्जेक्ट्स करने हैं, राइट, पूरा थियोरेटिकल आपको कवर करना है। ईयर 2 इज फुल्ली ऑन द प्रोजेक्ट साइड। यू वट एवर आपका मेजर आपने चूज करा, आपको एक प्रोफेसर के अंडर एक प्रोजेक्ट करना होगा एंड देन यू हैव टू डिलीवर जो भी आपके डिलीवरेबल्स हैं।
Triple IT is more on course oriented side, course oriented and hands on, right? And by hands on I mean आपको कोडिंग ये लोग घोट घोट के पिला देंगे लिटरली. ट्रिपल आईटी इज नोन फॉर इट्स कोडिंग कल्चर, नॉट बिकॉज कि यहाँ पे लोगों को बता दिया जाता है कि कोडिंग करनी है. नो, ऐसा नहीं है. इट इज बिकॉज कि यहाँ पे जो भी आप असाइनमेंट करोगे, वो ऐसा असाइनमेंट ऐसा हो ही नहीं सकता उसमें कोडिंग ना हो. सारे असाइनमेंट में कुछ ना कुछ लेवल का कोड तो होगा. सो उसमें क्या है ना कि आपकी लर्निंग बहुत प्रैक्टिकल होती है. अब जैसे एक बहुत ही कॉमन एग्जांपल, स्टैक ओवरफ्लो अटैक बहुत कॉमन एग्जांपल है, लोगों ने सुना होगा. ठीक है, पढ़ लेंगे, एज लॉन्ग एज जितना पढ़ लेंगे ठीक है, पढ़ लिया अलग है. लेकिन ना जब आपको उसका असाइनमेंट मिलता है कि आपको ट्राई करना है, कि Yeah. आपको वो एग्जीक्यूट करना है, आपको अटैक करना है, तब आपको वो थ्रिल आता है कि अरे यार ये चीज मैं रियल में कर पा रहा हूँ, राइट? तो जो आई थिंक ट्रिपल आईटी हैदराबाद हैज, मेरे हिसाब से इट हैज एडवांटेज इन टर्म्स ऑफ कि स्टूडेंट्स ट्रिपल आईटी हैदराबाद के आर मोर इंडस्ट्री रेडी. तो ट्रिपल आईटी हैदराबाद का जो करिकुलम है, आई फेल्ट कि उनका करिकुलम एंड द वे दे डिलीवर टू द स्टूडेंट्स एंड जो एक्सपेक्टेशन होती है स्टूडेंट से, राइट? सो स्टूडेंट्स आर मोर इंडस्ट्री रेडी बिकॉज दे नो इट प्रैक्टिकली. एक थ्योरेटिकली तो हर कोई पढ़ लेता है, कोई बड़ा बात नहीं, बट अगेन व्हेन यू कैन अप्लाई दोस कांसेप्ट्स इन प्रैक्टिकल वर्ल्ड, क्योंकि आप खुद ही सोचो ना, कोई चीज हम क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि वो रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट करती है, राइट? एंड इफ वो रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट करती है देन यू शुड बी एबल टू अप्लाई इट. तो वो ट्रिपल आईटी हैदराबाद के स्टूडेंट 2 साल में वो सारे कंसेप्ट कर चुके होते हैं प्रैक्टिकली. एंड प्लेसमेंट के टाइम पे आई मीन दैट्स द फैक्ट, आप किसी से भी पूछ लेना, ट्रिपल आईटी हैदराबाद के स्टूडेंट्स को ज्यादा कोडिंग प्रैक्टिस नहीं करनी पड़ती. दे आर कॉन्फिडेंट एट कोडिंग पार्ट वेरी इजीली, whereas आईआईटी के स्टूडेंट्स स्ट्रगल अ लॉट ड्यूरिंग प्लेसमेंट. आई हर्ड कि यार कोडिंग बहुत टफ पूछते हैं, बट ट्रिपल आईटी स्टूडेंट से मैंने कभी नहीं सुना कि यार बहुत ही टफ राउंड पूछते हैं. आई थिंक मोस्टली सबके लिए कोडिंग राउंड इज लाइक यार ठीक है कर लेंगे. तो इसलिए आई थिंक कि मेरे हिसाब से ट्रिपल आईटी हैदराबाद एट पार तो है, बट इन टर्म्स ऑफ इंडस्ट्री रेडीनेस it's Yeah. more better. That I'll agree on, because being here at ISC, so yeah, I can see that, like as you mentioned, that there is 1 year of course curriculum and then research work is there. So yeah, we have it over here. And with respect to the coding part as well, I would say that okay, बहुत ज़्यादा डरते हैं, but still the large portion is they just fear a bit about coding की बहुत ज़्यादा difficult ना हो. Otherwise, we also have this assignment. But हाँ, as you mentioned, if in every assignment you are getting the coding part and you are like घोट घोट के पिला दिया है, then it's for like you are, अगर तुम सोए हो, उठा दे अचानक कि तुम्हें देना है, then I guess still you are ready for some kind of coding test then. So okay, and what about the boundary line which you'll create for admission? अगर कोई स्टूडेंट सोच रहा है कि ठीक है ट्रिपल आईटी हैदराबाद से ऑफर आ रहा है, and then IITs में भी उसको like would you go with the same thing कि top 7 IITs और top 8 IITs में नहीं हो रहा है तो ट्रिपल आईटी हैदराबाद, और वहां पर भी आप थोड़ा सा ये बोलना चाहोगे कि मैं इसको प्रेफर करूंगा ओवर टॉप 5 IITs और टॉप 3 IITs में अगर नहीं हो पा रहा है तो कुछ ऐसा? आई वुड से कि अगर आपको आईएससी बैंगलोर, आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी कानपुर एंड इवन आईआईटी खड़गपुर, इनके अलावा और कोई आईआईटी नहीं, मतलब लेट्स से ये आईआईटी आपको नहीं मिल रहा है, देन आई थिंक हैंड्स डाउन ट्रिपल आईटी हैदराबाद. ऐसा नहीं कि ट्रिपल आईटी, और आप अगर यू कैन ऑल्सो, मैंने काफी लोग I have read blogs कि they have chosen Triple IIT Hyderabad instead of IIT Bombay, and there are also many people that choose ISC Bangalore over IIT Bombay. So ठीक है, हर किसी का एक प्रेफरेंस होता है, बट अगेन अगर आपको ये IIT जो मैंने बताया आपको ये सब नहीं मिले, तो आई थिंक ट्रिपल आईटी हैदराबाद इज एनी डे अ बेटर चॉइस. एंड अगर आपको IIT नहीं भी मिल रहा है कोई भी, तो भी आप ये मत समझो कि इट्स एन एंड ऑफ वर्ल्ड फॉर यू. व्हाई? बिकॉज द सेम, जैसा विक्रम बोले कि ट्रिपल आईटी हैदराबाद इज अ टियर 1 कॉलेज, राइट? सो आपको सेम अपॉर्चुनिटीज दोबारा से, तो एक तरीके से आप ये सोचो कि आपको एक एक और कॉलेज का वो ब्रांड नेम अलग हो गया है, बस अपॉर्चुनिटीज आपको वही मिल रही है, राइट? प्लेटफॉर्म आपको वही मिल रहा है. तो नाउ इट्स अप टू यू टू buckle yourself up and grab that opportunity. Okay. So ठीक है, I hope मैंने आंसर करा हो आपका क्वेश्चन, सचिन. नहीं, yeah, you have answered my question with respect to that, but yeah, I had a small thing that have you missed deliberately or you have literally missed it? IIT Madras. You did not mention that. No, I missed it. Yeah, thanks for pointing. IIT Madras is also a very good Yeah. option. Yes. Yeah. You're getting, yes.
take it. So basically, you are telling me that okay, you can keep it above IIT Guwahati or IIT Roorkee, IIT Hyderabad, if you are getting Yes. triple IIT Hyderabad, as per you. Yes. So top 5 Yes. IITs, if you are getting Yep. those and IIC you are getting, go for that. Otherwise, Go triple for IIT that. Hyderabad is a good option. I would recommend if you are more towards the research apt background, Yeah. right? अगर आपको उस चीजों में बहुत डीप जाना पसंद है, right? Then I would advise कि आप IIC Bangalore लो, क्योंकि IIC Bangalore I have heard from my friends that it's very research intensive. It's not Yeah. very coding oriented, but Maths very heavy as research well. intensive. Maths Maths heavy. heavy as well. Yeah. So yes, so if you like to know कि भाई कौन सी चीज का जन्म कहाँ से हुआ था, IIC is the best place. Exactly. कैसे कैसे जा रहा है, ठीक है, ओके. So okay, got that. So over here I would like to ask कि कोर्स स्ट्रक्चर के बारे में भी आप लोगों ने बताया, एंड विक्रम इज फ्रॉम एमटेक सीएस एंड सीएसई और वी कैन से, एंड यू आर फ्रॉम एमटेक सीएसआईएस. तो दोनों के कोर्स करिकुलम में क्या फर्क है और दोनों के एडमिशन प्रोसीजर में क्या फर्क है? कैन यू जस्ट एनलाइटन ओवर दैट, विक्रम फर्स्ट? Sure. So basically, when you are filling the form, right? I think उस time ही वो लोग पूछते हैं like you are applying for MTech, CSE, CSIS or both. Like you can apply for both. तो मैंने अपने टाइम में दोनों में अप्लाई किया था. Since I came from a security background, like information security background only while working in a job. तो मेरे को like मेन तो यही था कि like I need to change my career on that part. Like तो मैंने CSC के लिए जाना था, बट मैंने दोनों भरे थे एज अ सेफ ऑप्शन की यार. मुझे भी इतना आइडिया नहीं था कि क्या होता है, पर इंटरव्यूज में कुछ फर्क नहीं होता. व्हेन यू गोज ऑन द इंटरव्यू पैनल, तो इंटरव्यू तो दोनों के लिए सेम ही होता है. ऐसा नहीं होता कि अलग हो रहा है आपका इंटरव्यू CSC के लिए, CSIS के लिए. So after asking question, they asked me like what you prefer, like CSE or CSIS. So they asked me the reason, like you take the CSIS also, but you want CSE, like what? So I gave my own reasons and I got the MTech CSE. तो या मैंने एमटेक सीएसई लिया क्योंकि लाइक ऐसा कोई फर्क नहीं होता लाइक कि आप कॉलेज में आ रहे हो, सीएसआईएस आ रहे हो तो आपको अपॉर्चुनिटीज कम हो जाएंगी. कुछ नहीं होता, प्लेसमेंट दोनों के लिए सेम होता है. बस ये फर्क होता है कि सीएसआईएस के कुछ सब्जेक्ट फ्रॉम सेकंड सेमेस्टर कुछ फिक्स सब्जेक्ट्स होते हैं सिक्योरिटी के, जैसे 4 सब्जेक्ट्स हैं, राइट? तो उनके 2 सब्जेक्ट्स फिक्स रहते हैं उनके लिए, लाइक सीएसआईएस वालों के लिए. CSE के लिए ऐसा कुछ नहीं होता है. दे कैन मेक इट लाइक मिक्सचर ऑफ द सब्जेक्ट्स. बट CSE में एक चीज होती है कि अभी कुछ करिकुलम चेंज किया उन्होंने, तो बेसिकली कुछ सिस्टम के और AI के सब्जेक्ट्स आपके फिक्स होते हैं कि इतने क्रेडिट के सब्जेक्ट आपको 3 सेमेस्टर में खत्म करने. 4 सेमेस्टर में, सॉरी. क्या होता है, फर्स्ट सेमेस्टर में कुछ मैंडेटरी सब्जेक्ट होते हैं, जैसे OS मैंडेटरी सब्जेक्ट होता है, DSA. तो ये कुछ और DSA नहीं, मतलब DSA होता है, पर OS को लोग सिस्टम्स में गिनते हैं. एक्चुअली OS को लोग सिस्टम में गिनते हैं. तो वो क्रेडिट ऑलरेडी आपके खत्म हो चुके होते हैं, लाइक सिस्टम्स में अब कुछ बाकी कुछ क्रेडिट्स होते हैं वो खत्म करने होते हैं. तो ऐसे OS सॉरी सिस्टम्स के और AI के कुछ क्रेडिट्स आपको ओवरऑल 4 सेमेस्टर में खत्म करने हैं. लाइक आप और कोई सब्जेक्ट नहीं ले सकते. तो उसके अलावा आपको कुछ और लेना है तो वो ले सकते हो, बट कुछ मैंडेटरी क्रेडिट्स आपको पूरे खत्म करने होते हैं फ्रॉम सेकंड सेमेस्टर, थर्ड, फोर्थ सेमेस्टर. CSIS में क्या होता है, उनके सब्जेक्ट फिक्स रहते हैं कि यार तुमको ये 2 सब्जेक्ट सिक्योरिटी के लेने ही लेने हैं. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, पर प्लेसमेंट में ऐसा कोई दिक्कत नहीं होती. प्लेसमेंट आप जब जाते हो, लाइक व्हेन यू आर सिटिंग फॉर प्लेसमेंट, तो वहां पे सबके लिए सेम अपॉर्चुनिटीज होती है. वो आपसे नहीं पूछता है लाइक यू आर फ्रॉम CSIS, CSE. इट्स जस्ट MTech and everything is same for them. So that's my knowledge. And one more thing, like total 68 credits का total 4 semester होते हैं. MTech CSE is the total 68 credits. पहला semester 20 credits का होता है, बाकी semester 16 के credits के होते हैं. If you okay. Right, it's making it sense. 16 के credits होते हैं and 68 का total होता है. और उसमें से कुछ credits आपको मैंने बताया, कुछ बकेट्स होते हैं, सिस्टम AI के बकेट्स होते हैं, और शायद से एक और वो करना ही होता है आपको मैंडेटरी, और दैट्स इट. और इतने कुछ ज्यादा नहीं होते, क्रेडिट्स कम ही होते हैं. लाइक यू कैन गो फॉर योर फ्रीली व्हाटएवर द सब्जेक्ट यू वांट टू चूज. ऑडिट करके सेमेस्टर में आपको क्या होता है, जैसे आपका सेमेस्टर चालू होता है तो आपको 1 हफ्ता ऑडिट करने को मिलता है. यू अटेंड द क्लासेस, ऑल क्लासेस, एंड आपको जो सब्जेक्ट फिक्स लगता है कि हाँ मुझे ये समझ में आ रहा है सब्जेक्ट, एंड यू कैन गो फॉर दैट सब्जेक्ट, एंड दैट्स अबाउट. या दैट्स अ थिंग. आई थिंक मोर कैन, आई थिंक आयुष कैन ऐड ऑन अदर पार्ट. या सो मैं CSIS से हूँ, तो मैं CSIS का बता सकता हूँ क्या डिफरेंस होता है. तो पहले मुझे भी लगा था. द थिंग इज, इंटरव्यू प्रोसेस में कोई डिफरेंस नहीं होगा. आपको 2 प्रेफरेंस मिलती हैं जब आप एप्लीकेशन फॉर्म भरते हो. मैंने भी पहला CSE भरा था, दूसरा CSIS था.
एंड मुझे CSIS अलॉट हुआ था। तो पहले मुझे भी लगा था, मेरे भी मन में कुछ डाउट्स थे कि ऐसा तो नहीं है कि CSIS में है तो अपॉर्चुनिटी अलग होगा, या मैं प्लेसमेंट में अलग तरीके से बैठूंगा, या मेरा लर्निंग एक्सपीरियंस बहुत ही डिफर कर जाएगा, बट ऐसा नहीं है। सो मैं बताता हूँ बेसिक डिफरेंस क्या होता है। देखो 4 सेमेस्टर तो पढ़ाई करनी है, राइट? 2 साल है, 2 साल तो पढ़ाई करनी है, ठीक है? तो 4 सेमेस्टर में ट्रिपल IIT का तो बता दिया है ना। IIT का क्या है, पहले साल पूरा पढ़ाई करोगे, अगले साल प्रोजेक्ट करोगे। ट्रिपल IIT हैदराबाद में तुम चारों सेमेस्टर कुछ ना कुछ कोर्स लोगे और उस कोर्स में असाइनमेंट हो, ठीक है? अब जैसा विक्रम ने बताया कि पहला सेमेस्टर आपका 20 क्रेडिट्स का होता है, बाकी सेमेस्टर आपके 16 क्रेडिट्स के होते हैं। सो फर्स्ट सेमेस्टर इज कॉमन फॉर बोथ CSE और CSIS, दोनों के लिए कॉमन है। कॉमन सब्जेक्ट्स होते हैं आपको, सेम सब्जेक्ट। आई थिंक आप लोग सेम क्लास में ही बैठोगे, तो आपको ऐसा लगेगा कि यार पूरा बैच एक ही क्लास में है। हम सेकंड सेमेस्टर क्या होगा कि CSE इज गिवन अ फुल हैंड कि व्हाट प्रोजेक्ट्स दे वांट टू चूज, बट अगेन दे आर लिमिटेड बाय द सिलेक्शन ऑफ कि सिस्टम के इतने क्रेडिट्स हाँ, पूरे करने हैं। पूल्स, पूल चॉइसेस पूल होते बेसिकली। हैं, पूल चॉइसेस से दे आर बाउंडेड। बट हमारा CSIS में क्या फायदा होता है ना, जो हमारे कंपलसरी सब्जेक्ट होते हैं सेमेस्टर 2, सेमेस्टर 3, सेमेस्टर 4, तो वो कंपलसरी सब्जेक्ट्स हमारी रिक्वायरमेंट फुलफिल कर देते हैं ऑटोमेटिकली। तो हमको दिमाग नहीं लगाना है कि यार हमारी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो रही है नहीं हो रही है। हमें पता है कि यार ये सब्जेक्ट्स तो कर ही देंगे। और वो एक्चुअली जो आपके कंपलसरी सब्जेक्ट्स होते हैं, अगर आपको सिक्योरिटी में इंटरेस्ट है तो आपके लिए वो बहुत अच्छे सब्जेक्ट्स हैं। वो सिक्योरिटी का डीप इंसाइट देते हैं। यू कैन ऑल्सो चूज टू परस्यू अ रिसर्च। मतलब देयर हैव बीन स्टूडेंट्स इन आवर बैच जिन्होंने एक्टिवली प्रोफेसर्स को रीच आउट करा थर्ड सेमेस्टर में, एंड दे, ठीक है, वो एक एक्स्ट्रा वर्क करा उन्होंने अपने ऊपर अपार्ट फ्रॉम द कोर्स वर्क जो सभी कर रहे थे। दे स्पेंड सम एक्स्ट्रा टाइम थ्रू आउट द डे प्रोफेसर्स के साथ बैठ के, एंड दे डिड सम रिसर्च वर्क, और उन्होंने पेपर्स भी लिखे हैं। थर्ड फोर्थ सेमेस्टर में दे डिड देयर पेपर्स, राइट? सो यू कैन डू दैट वर्क अगर आपको लगता है कि हाँ ठीक है मुझे रिसर्च। सो एमटेक इज लाइक मिनी PhD, है ना? कुछ लोगों को ऐसा भी हो सकता है कि वो एमटेक के बाद सोचे यार हम PhD करेंगे। सो दैट इज परफेक्टली योर चॉइस, बिकॉज हो सकता है आपका इंटरेस्ट जाग जाए एमटेक करते हुए। तो एमटेक इज समथिंग लाइक अ, एक बोलते हैं, इट कैन गिव यू अ स्नीक पीक इनटू कि आपको PhD करना चाहिए या रिसर्च नहीं के लिए भी, करना, हाँ। है ना? तो आपको एक फ्लेवर आ जाता है वो कि यार PhD कैसा होगा, व्हाट डज इट लुक्स लाइक, रिसर्च क्या होता है। तो आपको ये थोड़ा बहुत उसका you'll get hands on and technique. You have opportunity also, right? But और सेमेस्टर 2, सेमेस्टर 3, सेमेस्टर 4 में आपके, हाँ, सब्जेक्ट्स होते हैं। आई थिंक सेमेस्टर 3 में 4 क्रेडिट का एक प्रोजेक्ट लेना होता है CSIS में। तो मोस्टली हमारे टाइम में आई थिंक इट्स अप टू यू, यू कैन टेक अ प्रोजेक्ट, फैकल्टीज लीव अप टू यू, यू कैन टेक अ प्रोजेक्ट और यू कैन टेक अ सब्जेक्ट। बट आई थिंक प्रोजेक्ट अब लेना पड़ता है, आई एम नॉट श्योर। प्रोजेक्ट एक लेना पड़ता है। तो आई एम नॉट श्योर कि मे बी एन इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट, आप किसी प्रोफेसर के अंडर एक इंडिपेंडेंट स्टडी भी कर सकते हो। सो आई थिंक इट इज समवेयर गिविंग यू चांस टू कैरी योर ओन स्मॉल रिसर्च वर्क, या फिर आप एक कोर्स भी ले सकते हो। आई एम नॉट श्योर कि कोर्स ले सकते हैं नहीं, बट हाँ 4 क्रेडिट का रहता था। और हाँ फाइनल सेमेस्टर में 8 क्रेडिट का प्रोजेक्ट दोनों के लिए रहता है। 8 क्रेडिट का कंपलसरी होता है CSIS, और आई थिंक विक्रम CSE में भी होता था 8 क्रेडिट का। You guys had to take 8 credits of project. I'm not sure if it was compulsory. You remember? I took the like project with you only in third semester. I don't remember कि मैंने fourth semester में कुछ लिया था ऐसा. Okay, okay. So Maybe CSIS में I think 8 क्रेडिट का आपको फाइनल ईयर में प्रोजेक्ट लेना ही लेना है, ठीक है? फाइनल I think सेमेस्टर CSE फाइनल में में fix नहीं प्रोजेक्ट। है. CSE में mandatory नहीं है. I got Yes, that. yes, Yeah. yes. So CSE में I think you can choose instead of those 8 credits into the project, you can choose कि यार you can choose subjects and you can study those subjects. बट अगेन सी यू आर नॉट लिमिटेड कि यार आपको ही लगेगा कि यार ठीक है CSIS में मेरे को प्रोजेक्ट लेना ही लेना है, अब मैं सब्जेक्ट्स नहीं ले पा रहा हूँ, मैं पढ़ नहीं पाऊंगा। ब्रो नोबडी स्टॉपिंग यू फ्रॉम स्टडिंग। स्टैंडर्ड बुक से सारे प्रोफ पढ़ाते हैं, तुम्हें पढ़ना है तुम भी पढ़ सकते हो, जाओ एग्जैक्टली। पढ़ो। यूट्यूब पे ट्यूटोरियल्स हैं, असाइनमेंट वो बुक के ही असाइनमेंट देते हैं, स्टैंडर्ड बुक के असाइनमेंट देते हैं, आप भी उनको कर सकते हो। इट्स जस्ट दैट कि अब वो कॉलेज नहीं करा रहा है आपको, आपको खुद एग्जैक्टली। से करना पड़ेगा। तो ऐसा आपको कोई लॉस नहीं हो रहा है, राइट? एंड इनफैक्ट मैं तो कहता हूँ ये बेनिफिशियल है। क्यों?
आपको 2 प्रोजेक्ट एक्स्ट्रा मिले, थर्ड सेमेस्टर में आप एक अच्छा प्रोजेक्ट कर लो, फोर्थ सेमेस्टर में एक अच्छा प्रोजेक्ट कर लो, आपका रेज्यूमे रेडी है बॉस कंपनी प्लेसमेंट के लिए। वेयर एज सीएससी वालों को सोचना पड़ता है कि यार हम लोग प्रोजेक्ट लें या ना लें। हम लोगों के लिए पता है, डायरेक्शन उन्होंने दे दिया, यार तुम्हें प्रोजेक्ट लेना ही लेना है, तो ठीक है। इट आई थिंक इट वर्क्स इन फेवर ऑफ यू गेटिंग मोर इंडस्ट्री रेडी। सीएसआईएस का जो करिकुलम लगा, तो मुझे वो बेटर लगा कि यार क्योंकि ज्यादा होता क्या है ना, सोचना नहीं पड़ रहा। जहाँ आपको चॉइस होती है कि यार ये करूँ Exactly. वो करूँ, तो आप कंफ्यूज हो गए नेचुरली, इट्स ह्यूमन ब्रेन, यू Exactly. गेट कंफ्यूज, राइट? सो यस, तो हम पे चॉइसेस कम रहती थी, तो वी कुड चूज दैट। बट हाँ, लर्निंग एक्सपीरियंस में आई नेवर थिंक कि विक्रम ने ज्यादा लर्न कर लिया, मैंने कम लर्न करा, ऐसा कुछ नहीं है। लर्निंग एक्सपीरियंस सेम रहा हम दोनों का, Exactly. इवन सीएससी सीएसआई का। इन टर्म्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज भी, कंपनीज नेवर आस्क कि वेदर यू आर सीएससी और सीएसआईएस, या इवन ऐसा रिक्रूट जो प्लेसमेंट के टाइम पे ऐसा कभी नहीं होता कि ये कंपनीज में बस सीएससी वाले बैठेंगे और ये सीएसआईएस बैठेगा, ऐसा नहीं है। इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलता है। हाँ, डिफरेंशिएशन वहाँ आता है कि कुछ कंपनीज दे ओनली अलाउ बीटेक कैंडिडेट्स, सो उसमें तो आप कुछ नहीं कर सकते, राइट? उसमें तो एमटेक नहीं अगर अलाउड है, तो कोई भी नहीं, Exactly. चाहे सीसी हो चाहे सीएसआईएस हो, वो अलाउड नहीं होगा। बट अगेन देयर आर वेरी फ्रैक्शन, मतलब मैं अगर बोलूँ तो यू कैन काउंट दोस कंपनी नेम्स ऑन हैंड। 3 या 4 Okay. 5 कंपनीज होती हैं जो बीटेक सिर्फ बीटेक ओनली बीटेक क्राइटेरिया लेके आते हैं, बाकी मोस्टली दे एक्सेप्ट एमटेक। सो इन टर्म्स ऑफ अपॉर्चुनिटी आल्सो यू आर नॉट losing out on anything even if you get CSIS, right? Okay. And again I said कि लर्निंग आपकी कॉलेज में ही खत्म नहीं हो जाती है, राइट? आपको अगला है कि यार मैंने 2 साल पढ़ाई कर ली और अब मेरी जॉब लग गई, मेरी लर्निंग खत्म हो गई। नहीं, लर्निंग खत्म नहीं हुई, आप चाहते हो तो खत्म हो गई। आप अगर लर्न कंटिन्यूसली करना चाहते हो, यू कैन Yeah. कंटिन्यू। Okay. Okay. ठीक है, एक So अच्छा disclaimer, पर्सपेक्टिव like मिला। disclaimer, like fine. it won't affect your dream company. Yeah. या That's for sure. ओके ओके। सो अब ड्रीम कंपनी की बात कर ही रहे हैं, तो एक बार प्लेसमेंट के बारे में बात कर लेते हैं चलते हुए। तो प्लेसमेंट के बारे में लाइक यू कैन टेल मी कि हाँ 100% प्लेसमेंट, और इज इट लाइक कि स्टिल, मतलब क्योंकि अभी रिसेशन का टाइम, लाइक आईआईटीज और आईएससी में तो मुझे दिख रहा है कि इट इज इम्पैक्टिंग स्टिल। बट हाँ, ऐसा नहीं है कि लॉन्ग टर्म में कुछ नहीं वर्कआउट हो रहा है, बिकॉज प्रोफेसर्स आर ऑल्सो देयर हु आर सपोर्टिंग दी स्टूडेंट्स। ठीक है, बट हाँ स्टिल देयर आर दीज काइंड ऑफ सम students who are not getting placed, but still there is a hope for that because things are improving right now. What about Triple IT Hyderabad? Is it 100%? Not sure यार, this year we didn't ask it, This, but हमारे टाइम तो ठीक था, अच्छा था। हमारा कोविड टाइम प्लेसमेंट था, तो हाँ। like it was a year 2020 we were getting placed, और 2020 दिसंबर आई एम सेइंग। एक्चुअली यहाँ पे जो प्लेसमेंट है ना, थोड़ा आईआईटी से अलग चलता है। सो बेसिकली आप जो आईआईटीज में होता है, वो सितंबर से वो लोग रिटर्न्स देते हैं, देन नवंबर से दे स्टार्ट गिविंग इंटरव्यूज, लाइक यू नो, ऐसा होता है। लाइक December सितंबर, first week they have राइट these राइट, interviews. लाइक इंटरव्यूज, बट इनके एग्जाम पहले हो जाते हैं, राइट? हाँ। सितंबर से नवंबर के बीच में सबके रिटर्न्स दे देते हैं ये लोग। हमारे ऐसा नहीं होता है। हमारे यहाँ नवंबर एंड वीक से, थर्ड या फोर्थ वीक से वी स्टार्ट गिविंग द रिटर्न के डायरेक्ट बाद वी गिव इंटरव्यूज। तो बेसिकली व्हाट्स द बेनिफिट ऑफ दिस, कि जैसे फॉर एग्जांपल लाइक आयुष का एप्पल कंपनी है, एप्पल में उसने रिटर्न दिया एंड ही गॉट इंटरव्यूड एंड ही गॉट सिलेक्टेड, तो फिर इसका प्लेसमेंट हो गया, लाइक कीप हिम असाइड। सो एवरीवन, लाइक उसके बाद बचे हम लोग, कुछ लोग, लाइक यू नो, सॉर्ट आउट होते जाते हैं। तो डे 0, डे 1, डे 2 ऐसा होता है। डे 0 में कुछ कंपनीज आई, तो उसमें सब लोग हो गए, कुछ लोग हो गए, एंड लाइक उनका हो गया तो फिर खत्म। बीटेक एंड एमटेक दोनों के लिए सेम सिनेरियो है ट्रिपल आईटी में। तो ये होता है। कोविड का टाइम था, तो कुछ कंपनीज नहीं आई थी, आई रिमेम्बर, सिंस इट वाज दिसंबर 2020। तो कुछ कंपनियां नहीं आई थी, ऐसा नहीं था कि सारी नहीं आई, कुछ कंपनियां नहीं आई जिनका लाइक हम लोग वेट कर रहे थे, बट नेवर केम। बट प्लेसमेंट में ऐसा नहीं था, लाइक एवरीवन गॉट प्लेस्ड, मोस्ट प्रोबेबली सभी प्लेसमेंट हो गया था उस टाइम। इस साल का मेरे को सिनेरियो बिल्कुल नहीं पता ट्रिपल आईटी के अंदर कैसा चल रहा है। आई हर्ड न्यूज अबाउट कि अदर आईआईटीज एंड प्रीमियम कॉलेजेस, लाइक उनका नहीं हुआ है। आई एम नॉट श्योर इस पर क्या है, बट हमारे टाइम तो हो गया था, लाइक एंड लाइक यू नो, बहुत सपोर्टिंग होता है हमारे कॉलेज में। लाइक मेनली जो स्टूडेंट प्लेसमेंट कोऑर्डिनेटर्स होते हैं, और लाइक कॉलेज का जो टीपीओ वो होता है, लाइक मेनली स्टूडेंट्स एंड जो होता है अपना ट्रेनिंग प्लेसमेंट ऑफिस, दे सपोर्ट यू लाइक गेटिंग प्लेस एंड एवरीथिंग। दे विल हेल्प यू इन एवरी वे आउट, लाइक यू नो, गेटिंग प्लेस। they will, like you know, try to increase the number in the company, like you know, कि like इसका हो जाए and all that, they will try, like you know, everything। तो ये सबसे अच्छा होता है। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर नहीं भी होता है, तो एक हमारा जो एलुमनाई नेटवर्क है ट्रिपल आईटी हैदराबाद Yes. का, दैट्स
बेस्ट, दैट्स ग्रेट. लाइक यू नो यू कैन लाइक आप किसी को कांटेक्ट करोगे ट्रिपल आईडी में, दे विल रिस्पॉन्ड यू विद दैट एंड दे विल हेल्प यू विद ऑल द थिंग्स, लाइक यू नो उनका रेफरल लगवाना एंड ऑल दैट. सो आई डोंट नो अबाउट आईआईटीज और आईएससी का क्या है. Same. So ultimately, what we know is like it ends well. अगर उस time पे नहीं हो रहा है, just because companies are not visiting, that doesn't mean that you won't be going to a company for working. That will be there. It's just that it's taking time, and at the end, it would be working. And it would be working like good only. You'll be getting a company for sure. That is definitely. Anyway, sure. you will get the help. Like you know, आपके seniors आपको help करेंगे. Like you contact them. Like there are groups and हमारे app पे we are very you know close network and we are connected. So they will help you out anyway. So yeah, उसका तो load नहीं है. Like you know, you will not get placement if you are capable. तो कहीं ना कहीं से आपको opportunity तो मिल ही जाएगी कहीं ना कहीं से, either from college या referral के through या seniors के through. You will get any opportunity to get yourself into an interview part and get selected. That's my experience. I think Ayush can give it more like on that part. Placement का I think इस बार effect तो हुआ है. Exact number तो even I'm not sure. But yes, I was talking to some of my junior Triple IT Hyderabad में. They were in contact with the current students जो वहाँ पे अभी graduating हैं इस year. They told me कि हाँ problem तो है. But I think it won't remain a problem for long. ठीक है, problem maybe January month तक हो, February month. But I think मैं देखने लगा हूँ कि recruiting has started again. So I don't think the problem रहना चाहिए long term के लिए, right? And given that Triple IT Hyderabad का alumni network is very good. आप supportive भी हैं, आपके seniors काफी supportive हैं. मुझे अभी भी याद है, मुझे जब Amazon का referral चाहिए था, तो जब आपके LinkedIn पे लिखा होता है ना alumni Triple IT Hyderabad से हो आप connection request भेजते हो, you ask people for resume, people are very happy to help you out. तो एक वो आपका एक जो बॉन्ड बन जाता है ना कॉलेज के एलुमनाई नेटवर्क से, वो एक लॉन्ग लास्टिंग है. तो वहाँ से भी आपको काफ़ी हेल्प मिलता है. मतलब मुझे तो पर्सनली मेरे ट्रिपल आईटी सीनियर्स ने बहुत हेल्प करा था रेफरल देने में. तो यस आई कैन बेट ऑन दैट कि इवन इफ अगर आप ट्रिपल आईटी हैदराबाद के स्टूडेंट हो और आप ये वीडियो देख रहे हो तो आपका प्लेसमेंट नहीं हुआ है, तो डोंट लूज होप, हो जाएगा. जस्ट bank on your capabilities and people are there to help you. Keep upgrading yourself. Keep upgrading yourself. बाकी हाँ, I think companies के terms में there is no difference. But हाँ, Apple एक कंपनी जो सिर्फ ट्रिपल आईटी हैदराबाद में आती है और I am not sure किसी IIT में भी आती है, not sure, but हाँ, Apple is the only company that comes first into ट्रिपल आईटी हैदराबाद. For that record, like, Apple for the first time when it came for the placement to the college, that was Triple IT Hyderabad, that I know. But now I got to know that it is visiting some IITs and in fact non-IIT colleges with Apple. Right. So now it's happening. Okay, so can you just tell me some big names, because that is the part which excites most of the students कि भाई साहब ये कंपनी आ रही है तो ये अपना डन हो गया, चाहे वो फिर बाद में प्रिपरेशन करना है कितना करना है वो नहीं पता अभी. But still, just for the sake of information, what are the big names which a student definitely can expect for the placement? Vikram, you can go ahead. Vikram, you can go to placement में बैठे थे ना. So basically Microsoft was there, Apple was there, for Texas Instrument, Walmart, Google का ऐसा था. Qualcomm, Google का ऐसा था कि Google का एक क्या होता है, एक like pool round होता है, like उसमें कुछ IITs को include करते हैं, ट्रिपल IITs are part of that. तो ऐसे इंटरव्यूज हुए थे, like रिटर्न ऐसे हुआ था, फिर इंटरव्यूज तो इंडिविजुअली हुए थे. तो Google का ऐसा हुआ था. तो Google was also there. And Qualcomm या ये Qualcomm हुआ, Ola था, Ola आई थी, Flipkart शायद नेक्स्ट ईयर आई थी, I don't remember, but Flipkart I heard कि मतलब हमारे उसमें आई थी, हमारे टाइम में सिर्फ डेटा साइंस के लिए आई थी, not for the SD, but next year I heard कि like SDs के लिए भी आई थी. What about Amazon, Uber? Amazon was there, Uber was there, both companies were there actually. Amazon, Uber, Ola was also there, and फिर Adobe and all that. Adobe was also there. Adobe also come for interns also. Okay. And Adobe interns के लिए भी ये सारी आती हैं कंपनीज. इंटर्न्स में कुछ कंपनीज में शायद से हम नहीं वैलिड होते, बट प्लेसमेंट टाइम में हम सभी कंपनीज के लिए जितनी भी कंपनी आप बोल रहे हो वी आर वैलिड हो दैट. Adobe एक्चुअली शायद से हमारे कोविड टाइम में
पूल में आई थी, अभी फिर इंडिविजुअली आना चालू हुई थी अगले साल से, बट हमारे टाइम में पूल में आई थी ड्यू टू कोविड में तो बहुत रिस्ट्रिक्शंस थे प्लेसमेंट्स में। ओके एंड उसके अलावा लाइक एनवीडिया आई थी, एनवीडिया वाज देयर, कोएसिटी थी, कोएसिटी, एनवीडिया, एंड इसके अलावा माइक्रॉन थी, कैशफ्री वाज देयर, एंड ओके कैशफ्री के ऊपर माइक्रॉन, कैशफ्री, और उसके अलावा भी ओपन प्ले आई थी एक, मेरे को जहाँ तक याद आ रहा है। So like I guess like हाँ, all the big names which a student may target, Big like names all are- these were there. ऑल द बिग नेम्स कम, अमेजोन सब आता है, लाइक उसका Okay. वो नहीं है, Okay. every company। And okay, so yeah, one thing I'd like to tell right now, because we are falling short of time, so there are only 5 minutes right now. Okay, so what we'll be doing, so I'll be asking you 3 or 4 straight questions. Okay, let's just talk about that and then we'll end the session. Okay, so the first thing is I forgot to ask, so it's good you mentioned with respect to the internship. So in the summers, does every student get the opportunity to do intern? मोस्ट ऑफ देम गेट द अपॉर्चुनिटी, लाइक मोस्ट ऑफ देम जो अप्लाई करते हैं जिनका हो जाता है, ऐसा नहीं बोलूंगा कि पूरा बैच का हो जाता है, 50% से 30 to 50% लोग करते हैं। अगर आपको तब भी इंटर्न करना है तो लोग क्या करते हैं, उस 3 महीने में किसी प्रोफेसर के अंदर किसी रिसर्च वर्क पे काम करते हैं। Okay. दैट्स अ इंटर्नशिप फॉर देम। और मोस्ट ऑफ द पीपल जो बच जाते हैं वो लोग मोस्टली जो 3 महीने मिलते हैं आपको, उस 3 महीने में दे प्रिपेयर फॉर द प्लेसमेंट, राइट? लाइक जो दिसंबर में Okay. आएगा तो उसके लिए कोडिंग थोड़ा स्ट्रॉन्ग करते हैं, सिस्टम डिजाइन पढ़ते हैं, या जो भी हम्म। इनका प्लान होता है, तो 3 महीने में वो करते हैं। तो जो ऐसे जो इंटर्न्स लगते हैं, जो 30 से 50% बच्चों का लगता है, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट एमटेक, नॉट ऑन बीटेक पार्ट, 30 से 50% जो बच्चों का लगता है, इट्स एवरी ईयर डिफरेंट, लाइक यू नो उस साल का बहुत अच्छा है, लाइक यू नो सिनेरियो, जैसे 2018 की बात करता हूँ, 2018 was booming, like 2019 was booming, sorry, 2018 to 19 was booming, right? तो उस टाइम बहुत सारे इंटर्न्स लग गए थे हमारे एमटेक में, पर 2020 when the covid came तो बहुत सारी कंपनीज ने बैकआउट कर दिया, क्योंकि उनके पास ऐसा सिस्टम नहीं था कि लाइक यू नो कि वहां पे काम करा सके। तो जैसे सैमसंग हुआ, ओके सैमसंग आल्सो, राइट, मैं वो नाम नहीं लिया था, सो सैमसंग कुछ कंपनी से बैकआउट कर लिया था, लाइक बट अभी तो कोई बैकआउट नहीं करेगा, क्योंकि आई थिंक सबने इंफ्रा डेवलप कर दिया है फॉर ऑनलाइन एंड एवरीथिंग, या जो भी है। तो ये था, तो उस टाइम थोड़ा दिक्कत हुआ था लोगों को। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि कोविड टाइम के कारण इट्स अबाउट 30 to 50% जो लोग इंटर्न के लिए गए थे, आई थिंक इतना ही था। फिर और मोस्ट ऑफ द पीपल लाइक यू नो लाइक प्रिपेयर फॉर द दैट ओनली, लाइक for the companies only in that span of 3 months। Okay. ये Okay. था। Ayush, But would you like to- 2018-19 में the number was good, like it was 60% to 70%, 60% like जिन्होंने 60 to 70 जिन्होंने interns crack कर लिया था। And interns का सबसे अच्छा फायदा ये होता है, like you can focus on your curriculum after that, and लोगों का convert भी हो जाता है interns to permanent, Okay. like या companies PPO में, मिल that's जाता है. the PPO मिल जाता है, right? Replacement also। Yeah, Ayush, please। Yeah. So Yeah, Ayush, so in short, please, मेरा तो like right now. Yeah. PPO ही लगा था। मैं Okay, I was one great. of those। I interned with Qualcomm, मेरा PPO में हो गया था। तो लाइक एज विक्रम पॉइंटेड कि बेनिफिट ये होता है कि हाँ भाई एक बार आपका PPO लग गया, राइट? सो बिफोर द स्टार्ट ऑफ द फाइनल सेमेस्टर आपको पता है कि यार यू आर प्लेस नाउ फाइनल सेमेस्टर, यू कैन स्टडी योर सब्जेक्ट नाइसली, राइट? जो भी आपके सब्जेक्ट्स होते हैं आप फोकस होके पढ़ सकते हो। So Okay. that's the advantage you get. And yes, I think internship opportunities सभी के लिए equally रहती हैं. Okay. Okay. There is no difference in terms of opportunity. Okay. So cool enough. So yeah, thank you guys for this amazing interview. So I guess you have answered all the questions which any student would be looking forward to while considering that he has to appear in IIIT Hyderabad exam, PGEE. So before going, what would be the final suggestion you would like to give to those students who are looking after this exam? So Ayush, you can go first right now. Any suggestion? I can, yeah, only one suggestion is कि ठीक है, like forget whatever has happened in game, जो भी हुआ हुआ, right? But it is a good opportunity, and इसको भी end of the world नहीं समझना. It is a very good opportunity, but don't take it as end of world. Why? Because for you to grab this opportunity, आपका mind का काम होना बहुत जरूरी है on the day day, right? Not on the written, but also on the interview day. ठीक है, आप like आपका preparation अच्छा था, ठीक है, गेट में जो हुआ सो हुआ, that's a different story. But here's another shot for you, and
हो जाएगा. It's not much difficult. Just believe in your preparation and ठीक है, chill होके पेपर देने जाओ, इंटरव्यू देने जाओ, and let's leave it to God. ठीक है. Okay. Yeah, Vikram. So yeah, I mean, same thing. What I want to say, like it's easy to say. अगर मैं यहाँ बैठा हूँ और मैं बोल रहा हूँ like believe yourself. That's I mean करना बहुत tough है, right? हाँ. But मैं एक चीज कहना चाहूँगा like it's not the end of the world. Like ऐसा नहीं है कि ट्रिपल आई टी ही है. मतलब just go with the flow. Be fearless. I would say. देखा जाएगा यार, जो होगा देखा जाएगा. In that way you go, but prepare yourself. ऐसा नहीं है like you're not preparing. Just prepare yourself. बट उस दिन पे इतना फोकस एक्सपेक्टेशन मत रखो. लाइक जस्ट गो एंड जस्ट गो विद द माइंड. हैव फन इन दैट एग्जाम. लाइक यू आर सॉल्विंग सम पजल सॉल्विंग, जो मजा आता है लाइक कोडिंग प्रॉब्लम सॉल्व करने में यार. टेक इट इन अ सेम वे. डोंट टेक इट एज इन अ लाइक कि मेरा क्या होगा, ये नहीं हुआ, वो नहीं. डोंट टेक इट, जस्ट टेक इट इन अ फन वे एंड ऑल दैट. मैंने तो ऐसे ही किया था इन द एंड, सही बता रहा हूँ. लाइक आई डिडंट जैसे जस्ट द वे आई वाज गोइंग, सो आई टुक इन दैट वे. Same with the interview part. Just be yourself. Like आपका preparation is more than enough for all these things. अगर आपने गेट के लिए बहुत अच्छे से preparation करी है, तो it won't be like the rate of exam, but still be fearless on that day. Like be like थोड़ा open रखना. Like don't get focus, but be fearless. Okay. That's my great guys. So thank you guys for joining. और तुम्हें नहीं पता like it would be helping a number of students, क्योंकि अभी बहुत सारे स्टूडेंट एकदम जैसे मूड में चले जाते हैं कि बस पड़े हुए हैं बेड पे कि अब क्या हो गया, मतलब अब तो हो गया खराब. सो अब तैयारी दोबारा शुरू करेंगे, कब करेंगे, क्या करेंगे, कोई आइडिया नहीं रहता है. सो व्हेन दिस वीडियो विल बी रीचिंग आउट टू देम, सो या इट विल बी डेफिनेटली हेल्पिंग दोज स्टूडेंट्स. सो थैंक यू गाइस फॉर ज्वाइनिंग. और बहुत मजा आया एंड विल बी इंटरेक्टिंग अगेन मोस्ट प्रोबेबली. So I would like to connect with you, Vikram. I hope you are visiting ISC anytime soon. Sure. So Ayush, whenever you are also thinking about visiting Bangalore, do let me know because I'm here only. Okay. So मुझे मजा ऐसे आएगा. आना है. मुझे वहाँ मेस का खाना बहुत अच्छा लगा था. I was there only. अरे definitely आओ भाई, मतलब yeah, just come. I think A, B, C, D, right? D, 4 mess. Yeah, A, B, C, D, E. Till E we have it. Yeah, E was the recent one. Okay. So thank you guys for joining us. And for the students, I hope there are a number of questions. If you are having any further, you can just write down in the comments. I'll be answering you, and there will be these great guys, Vikram and Ayush. Definitely will be replying you over there. Okay. And still, if you have anything, if you would like to talk to me, you can talk to me, as I guess already my number is available. Still, I can repeat that, 9667812334. You can always contact me. Apart from that, yeah, I guess we have covered everything. So all the best, and I'll be creating another video with respect to the detailed explanation and detailed coverage about the exam exactly. So yeah, we'll meet soon. See you guys in the next session. Thank you guys. Okay. Thank you. So Thank you. thank you.